ہسبینڈ کیسا ہو، وائف کیسا. میں قرآن و سنت سے کمپلیٹ مکمل طور سے نہیں رکھ سکتا ہوں، لیکن کچھ جھلکیاں ضرور آپ کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آپ کیسے شوہر تھے، اور اس کے بعد آپ نے جو اقوال رکھے شوہر کے بارے میں کہا، بیوی کے بارے میں کہا، وہ میں ضرور آپ نے کہ کچھ نہ کچھ حد تک جو نکات میں نے جمع کیے ہیں. قرآن و سنت بہت ساری باتیں نکلی آتی ہے، لیکن ظاہر سے ہر بات میرے لیے بھی پاسبل ممکن نہیں تھا. تو جو کچھ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں گا اس وقت میں وہ رکھ انشاءاللہ عزیز کوشش کروں گا. نکات میں نے ایسے بنائے ہیں 10-15 نکات میرے پاس دونوں کے لیے، میرے وقت کے اعتبار سے نکات آپ کے سامنے ڈیوائڈ کر ہاف اینڈ ہاف رکھنے کی بہرحال کوشش. لیکن ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے یہ جاننا کیوں ضروری ہے کہ ایک مثالی بیوی اور مثالی شوہر کیسا ہوتا ہے، یا ایک ایگزمپلری ہسبینڈ اور وائف کیسے ہونا چاہیے، یہ دیکھنا کیوں ضروری. یہ اس لیے آج کے دور میں ضروری ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اکثر جو فتنے سارے سماج میں مچے ہوئے، جتنے کورٹ کے اتنے پولیس کے خاندانوں کی رنجیں، خاندانوں کے جھگڑے، گھر کے جھگڑے، تو میں بچے کی تربیت نہیں ہو رہی ہے، بچے بگڑتے جا رہے ہیں، سارے پرابلمس ہیں. ان پرابلمس کا ایک بڑا سبب، ان پرابلمس کی ایک بڑی وجہ جو میں نے نوٹ کیے وہ صرف اور صرف میاں اور بیوی کے اپنے اپنے پوزیشنز کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں ہو رہا ہے. وہ اپنی پوزیشنز نہیں سمجھ رہے ہیں. نتیجتاً کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بیان کیا، طویل ہے لمبی ہے، بس مختصر مفہوم رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ شیطان جو ہے اپنا تخت لگائے ہوئے ہوتا ہے اور ڈیلی ریٹنگ کرتا ہے، جس کے چیلے چپاٹے جو شیاطین گھومتے پھرتے ہیں، فتنے مچاتے ہیں، وہ آ کر رپورٹ پیش کرتے ہیں. اور وہ جب ایک آ کر رپورٹ پیش کرتا ہے تو وہ تو نے کچھ بھی نہیں کیا، تو نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ ایسا کہتے جاتا ہے. لیکن ایک آتا ہے اور آپ کہتا ہے کہ میں ایک عورت اور مرد کے پیچھے پڑا رہا، جو کہ میاں اور بیوی تھے، ہسبینڈ اینڈ وائف تھے، ٹھیک ہے، اور پڑا رہا، اور اس حد تک پڑا رہا کہ آخر میں نے بیچ میں طلاق کر. شیطان تعریف کرتا ہے، اس پیٹ تھپتھپاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے جو بیان کیا جا رہا ہے؟ شیطان اس کی تعریف کر رہا ہے، اس کو تبا رہا ہے کہ جب دو بھائیوں میں اختلاف ہوتا ہے تو دو انڈیویجول، دو بھائیوں کا اختلاف، دو بہنوں میں اختلاف ہو رہا تو دو لوگوں کا اختلاف ہے. لیکن جب میاں بیوی میں اختلاف ہوتا ہے وہ دو لوگوں کا اختلاف ہوتا ہے، وہ دو خاندانوں کا اختلاف ہوتا ہے، کبھی کبھار دو شہروں کا اختلاف ہوتا ہے، یہاں تک دیکھا جائے کہ دو ملکوں کا اختلاف بنتا ہے. اس کی انٹینسٹی، اس کے نقصانات بہت لمبے ہیں. تو کم از کم دو خاندان اور کم از کم ایک جنریشن برباد ہوتی ہے جو آ رہی ہے. سمجھ لیجیے شادی ہوئی، بچے ہو گئے، اختلافات جاری رہے، اور اس کے بعد توڑ ٹکڑا ہو گیا، جھگڑے ہو گئے، کیسز ہو گئے، تو ایک جنریشن تو ایٹ ویسٹ ہوتی ہے. تو شیطان بھی ظاہر سی بات ہے جب اب چیلوں کو تھپتھپا رہا ہے کسی عمل پر، تو عمل چھوٹا نہیں ہوگا، معمولی نہیں ہوگا، مذاق ہوگا، وہ بڑا اتنا ہوگا تبھی سمجھ رہا. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ جھگڑے، یہ فتنے، بچوں کی تربیت برابر ہو رہی ہے، اور گھر کے اندر بس شور شرابہ، آوازیں، خاندانوں میں مسئلہ، اور حالات لیول تک ہے کہ ایک جناب جو ہے تھوڑے دن آپ کو 15-20 دن نہیں دکھی، آپ اس سے کہاں چلے گئے تو عمرہ چلے گا، کیا بولیں گے؟ سمجھ رہے آپ، تھوڑے پیسہ نکل گیا، پھر 90 ہو گیا، 10-15 دن کے کسی نے بیل کیا، 15 دن کا ٹور ہو گیا، آ گئے. اور یہ ایک دم کامن، بلکہ اس حد تک ہے کیونکہ اس شعبے سے تو میرا خود کا تعلق ہے، اس لیول تک ہے کہ آپ کو کیا کہوں، مسلم ایریا کے اندر لوگ آنا چاہتے، اپنے تبادلے لوگ کروانا چاہتے ہیں. کیا میں ڈیٹیلز، کیونکہ مسلمان اپنی عزت کو بہت ڈرتا ہے، اور 98 کو ڈال دیں گے تو یہ نہیں چاہیں گے اس گھر کی عورت وہاں تک جائے، لہٰذا اس کریں گے تاکہ. تو آپ اندازہ لگائیے ہمارے روز ہے، اگر وہ 100 کیسز ہمارے بنتے ہیں سمجھ لیجیے پولیس اسٹیشن یا کورٹ کے اندر، تو میری بات لکھ لیجیے 70 میاں بیوی کے اختلاف، 70 یا مور، چوری بھی ہوتی ہے، مرڈر بھی ہوتا ہے، ریپ بھی ہوتے ہیں، مسلمانوں کا پرسنٹیج بہت کم ہے، لیکن 70% کیسز اور صرف میاں بیوی کے اختلاف کے. تو ٹاپک مثالی میاں ان کے لیے نہیں، یہ ٹاپک پورے معاشرے اور سماج یا ان کے لیے جو شادی شدہ یا ان کے لیے بھی جو غیر شادی شدہ ہے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے ان کی بھی شادی ہوں گی. اگر وہ مثالی ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہے وائف ہسبینڈ نہیں بنیں گے تو پرابلمس ہونے والے، سماج میں برائیاں اور بڑھنے والی ہے، کتنے فساد اور ہونے والے، لہٰذا اس سمجھنے کی ضرورت ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جب دو لوگوں کا نکاح ہونے والا ہے ان کی کاؤنسلنگ کی جائے پہلے اور پھر نکاح. اور صرف شادی کاؤنسلنگ نہیں ہونا، کاؤنسلنگ ایسی کی جانا چاہیے. تم اب شادی کر رہے ہو، شادی کے بعد تمہاری ذمہ داری ایز اے ہسبینڈ، میاں کے طور پر، ایک شوہر کے طور پر کیا ہوں گی، ایک پتی کے طور پر کیا ہوں گی، اور تم ایک پتی کے طور پر، ایک وائف کے طور پر، ایک بیوی کے طور پر تمہاری رسپیز کیا ہوں گی. اس کا مزاج کیسا ہوتا ہے، تمہارا مزاج کیسا ہے، لڑکی کا مزاج یہ ہوتا ہے، لڑکے کا مزاج یہ ہوتا ہے. تم ایک نئے گھر میں جاؤں گی، وہ لڑکی ایک نئے گھر میں آئیں گی، تم کو یہ برداشت کرنا پڑے گا، آپ کو یہ لے کر چلنا پڑے گا. یہ کاؤنسلنگ کی جائے، اور جس طرح سے ملنے کی کاؤنسلنگ کی جائے کہ یہ شادی ہے، اسی وقت ان کی یہ بھی کاؤنسلنگ کی جائے کہ آپریشن کیسا ہو، ضرورت پڑی تو. جب ہم کسی جگہ انٹری لیتے ہیں تو ایگزٹ بھی معلوم ہونا چاہیے، ضروری نہیں آپ استعمال کریں. جب گاڑی لیتے اسٹیپنی ہونا چاہیے، ضروری نہیں آپ اس کو کبھی چلائیں. جب گھر بناتے تو فائر ایکسٹنشن لگا ہوا ہوتا ہے، 20 سال میں ایک بار اور 50 سال میں زندگی بھر یہ فیکٹری میں جاتا ہے، نیا لایا جاتا ہے ان کیس ضرورت پڑ گئی تو. یہ بھی کاؤنسلنگ کا پارٹ ہو کہ شادی نکاح کی کاؤنسلنگ، اسی میں طلاق کیا ہوتی ہے وہ ایکسپلین کیا جائے تاکہ اگر ایکسلوٹ یوز کرنا پڑے اس کا بھی طریقہ معلوم ہو. بہرحال لیکن مسئلہ یہ ہے نہ شادی ہو رہی تو کوئی بتا رہا ہے کہ کیا کیا جائے. ہمارے نوجوان مرد اور ہماری لڑکیاں جو ہے ان کی سوچ کیا بتاتا ہوں. ان کی سوچ یہ کہ ابا نے امی کے ساتھ جو میں ویسا شوہر بننا ہے، سمجھ. لڑکیوں کی سوچ کیسا ہے، امی نے ابا کو اتنا دبا کے رکھا آج تک کوئی ایسی بھی بننا ہے، جا یہی سوچ لے کر آ رہے. مطلب کون کس پہ غالب آتا، جاتے ہی پہلا گول کرتا وہ اپنے کو پلان کر لینا، پہلا شاٹ میرے کو دینا ہے، تڑی دینا، جاتے ابا کے نام یہ کروں گی، بھائی کے نام یہ کروں گی، ساس کو دبا دوں گی، یہ کروں گی، ادھر بھی پلاننگ
मेरी शादी हुई, अब जाते क्या करना, सास को दबा देना, ऐसा करके देख जाते तेरी ननंदों को तो खाड़ा के फेंक देना, एक भी इज्जत नहीं करना, वो ऐसी है फला, एक तो ऐसी हो शादी का तो नाक पे दम कर शौर के फला फला फला, तेको ऐसा डील करना है। इसको भी लोग बोल रहे देख वो लड़की को ला रहा लाते के साथ ऐसा शुक्राना, बस एक बोले तो उठ के बिल्कुल बढ़िया नहीं, बिल्कुल इतना तेको रखना है। ये भी प्लानिंग और ये प्लानिंग दोनों अपने गोल लेके, क्योंकि दोनों के पास कोई रोल मॉडल, उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज ए हस्बैंड ना लड़कों ने देखा ना औरतों ने हमारी उम्महातुल मोमिनीन को एज अ वाइफ भी देखा कि भी कैसी होना चाहिए। दोनों के एग्जांपल्स और ही। ये अलग बात है कि अगर वाकई में हकीकत उनके वालिदैन घर के शादीशुदा लोग कुरान सुन्नत पे है और वो मिसाली मियां बीवी, एक अलग बात है, उनको भी लिया जा सकता है, लेकिन वो मिसाली नहीं होते आमतौर से, नॉलेज ही नहीं इस्लाम और दीन का। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ किसी पर, लेकिन ये हकीकत है, आप समझ रहे बात। तो लिहाजा आपको एग्जाम्पल बनाया मर्दों में और औरतों में, वो एक्चुअल एग्जाम। तो मिसाली माशरा कैसे बनेगा जब मिसाली लोग जो मिल रहे हैं वो मिसाली नहीं, एग्जाम्पलरी नहीं है, तो आप कैसे सोच सकते हैं एक बेहतरीन माशरा जिसमें सहाबा जैसे लोग परवान चढ़े और ताबन जैसा लोग परवान चढ़े और दिसी बन के निकले, वो तब तक नहीं हो सकता जब घर में अमन ना हो, और घर में अमन तब तक नहीं हो सकता जबकि दोनों को अपने अपने राइट्स एंड ड्यूटीज ना मालूम हो, क्या हुकूक है और क्या जिम्मेदारियां हैं। राइट्स भी और ड्यूटीज भी है ना, एक तो हक है साथ में जिम्मेदारी है, राइट्स है ड्यूटीज है, ड्यूटीज है तो राइट्स है। एक आदमी जो है किसी इदारे का मैनेजर है, उसकी ड्यूटीज है तो उसकी राइट्स भी है, मतलब उसकी जिम्मेदारियां तो उसके हुकूक भी है, काम कुछ ही करेगा तो इसको रखने वाला है, बताइए आपको। ड्यूटीज एंड राइट्स दोनों साथ चलते हैं हाथ में हाथ मिलाकर। तो हमारे पास ये कि राइट्स की तालीम तो दी जा रही, जिम्मेदारियां किसी को नहीं मानते, हुकूक अपने आप सब जता रहे हैं। मालूम हदीस क्या आता है, शौहर का हदीस में है कि अगर सजदा करने का हुक्म होता किसी को तो मेरे को होता, मतलब बीवी को समझा रहा है, मतलब शौहर को होता मेरे ही है, तो अपने हक बता रहे हैं आप, लेकिन अपनी जिम्मेदारी वो मुकाम आपको यही मिला शौहर के बारे में, क्योंकि वो खर्च करता है, लाता है, मेहनत करता है, मशक्कत करता है, सब कुछ कुर्बान करता है, वो ड्यूटी बुनियाद को राइट्स दिए गए। तो हक ये बताया गया कि अगर सजदा करने का किसको हुक्म देता, आप सुनाते दिया नहीं देता तो देता किसको करे सजदा ताज़ीमी, लेकिन मुझे वो, लेकिन होता तो इसको। अब टॉपिक तो हमने दे दिया, बहुत सारे लोग पहले से तय करके आए हुए बॉल किसके कोर्ट में जाने वाला, फैज भाई ये बोले तो मैं बोलूंगा देख क्या बोले सुन ले, हाँ इधर से एक मैसेज जा रहा उधर ही बोल के आएंगे, अब मैं भी बताती जाने के बाद वो भी पॉइंट निकाल रहा है, ये भी तो बोले ना साथ। तो ऐसे राइट्स मिलते, हुकूक ऐसे एक इंसान इज्जत, एक मुकाम, एक मिसाल देता हूँ, एक ऑफिस में आप काम, उस ऑफिस में आपको इज्जत और मुकाम कब मिलता बताइए, जब वो आदमी अपने आप को खपा देता है काम के अंदर, उसके काम की इंटेंसिटी, शौक, ज़ौक़ और काम की नफासत, परफेक्टनेस ऑफ वर्क देखकर सब गिरविदा हो जाते हैं उस वाइफ, अभी होता है। तो एक हस्बैंड को हस्बैंड का मुकाम कब मिलेगा, जब वो काम करे वैसा। एक वाइफ को मुकाम कब मिलेगा, जब वो काम करे वैसा। अब दोनों अब जो है मामले सिर्फ अगर राइट जताते रहे, देख मेरा हक ये, वो बोले नहीं मेरा हक ये, देख मेरा ये हक, तो ये मामला कर सुलझने वाला बात है, और ज्यादा उलझ जाएंगी, किसी नतीजे नहीं पहुंचेंगे, वो जो मिसाली माशरा होना वो कभी नहीं बनेगा। मियां बीवी के रिश्ते को एक्चुअली देखा जाए, आम बात हमने समझा ही, अगर उस रिश्ते को समझ जाए क्या है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी कभी वैसा पढ़ते कि आप कैसे ये और क्या ड्यूटी निभाई, कैसी कैसी मशक्कतें उठाई कि अज़वाज ने कैसे उठाई, कि कभी कभार तो होता खाने के साथ जाता और पूरे के पूरे घरों में आवाज लगाई जाती, नौ के नौकर एक जगह से खाना नहीं, ये हालत, वो उस लेवल तक बर्दाश्त कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब आने वाली चीजों को, इसलिए कि वो जान हमारे शौहर जो काम कर बहुत बड़ा काम है और इस काम में तकलीफ है वो भी कर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कुछ होता है, जो कुछ आता है तकसीम करते और हर बराबर बेचते हैं ताकि किसी का हक ना मारा जाए, ताकि जब जो कुछ है इसके लिए वो मैसर कर सके, तो दोनों अपने निभा रहे, दोनों अपनी तरफ से सब दे रहे हैं, उनके हुकूक देखिए, जो कुछ किया वो एक मिसाल है। लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है, हमें एक ऐसे आइडियल, ऐसे रोल मॉडल दिए गए जिनकी को अगर हम देख लें इंशाअल्लाह बहुत सारे साथ में छोटी मोटी तो यूं निकल, छोटी मोटी बातें। आइए एक छोटा सा वाकया सुना के मिसाली हस्बैंड एंड वाइफ और बीवी तरफ जाता है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु, एक ज़ौजा एक बीवी, बहुत बहस करती है, इख्तिलाफ करती है बातों, तू मैं हो जाती। तो एक दिन बोलते हैं मैं अब बहुत बर्दाश्त करती, अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब के दौर, अमीरुल मोमिनीन को आप कंप्लेंट डाल देता, कंप्लेंट दे देता कि बहुत तंग करे, इनफ इज इनफ। और वो उठे उसके साथ और अमीर के दरवाजे पे गए, दस्तक दी, दस्तक देने के बाद अमीरुल मोमिनीन खत्ताब बाहर निकले, तो सुन चुके थे अब्दुल्लाह कौन है, अब्दुल्लाह को बात हो चुकी, लेकिन आने में ताखीर। बाद में आकर पूछा अब्दुल्लाह तुम मेरे घर आए थे, मिले भी नहीं चले गए। अमीरुल मोमिनीन शिकायत लेके आया था अपनी बीवी की, जब घर पे आके दस्तक दी और उसके बाद आपने इंतजार करा, जो अंदर से आवाज आई सुनकर समझ गया कि आपकी हालत जो मेरी ऐसे निकल कर, समझ रहे आप। अमीरुल मोमिनीन भी औरतों के नेचर को जानते थे, अब्दुल्लाह इब्न मसूद समझ गए चीजें फितरत का हिस्सा हूं, कभी नहीं मैं ये बुराई की राइट्स को लिया जाए, मर्दों की फितरत है वो कभी नहीं छोड़ेंगे, औरतों की फितरत है जिसको अल्लाह ने पैदा कभी नहीं छोड़ेंगी, दोनों को इन चीजों को पहचान कर लेके चलना है तो मामला। जब दोनों ये नहीं पहचाने, नेचर नहीं पहचानते, आपने एक गाड़ी डाली, वो गाड़ी 50 की है, उस पर आप 1 टन माल डाल के चला रहे हैं, 50 सीसी लूना बेचारी नहीं चल सकती, समझ रहे आप बात। तो आपको नेचर पहचानना होगा, कौन फितरत के लिए किस काम की बनाएगी। तो औरत एक मिजाज पर अल्लाह ने पैदा की, हव्वा को एक मिजाज पर पैदा किया, और वो मिजाज की नस्ल में तमाम औरतों में लगता है, आदम को एक मिजाज पर पैदा किया, आदम तमाम सिफतें पूरी मर्दों में होती है, उनकी औलाद में मर्दों में चलक। तो दोनों सिफतें हैं, दोनों के मिजाज है, दोनों की एक बनावट है,
ہے. دونوں کے بنانے کا اللہ کا اپنا ایک طریقہ رہا ہے کہ ایک کو مٹی سے بنایا, دوسرے کو اس کی پسلی سے بنایا. تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم اپنے نیچر کو سمجھ جائیں تو معاملہ حل ہو جائیں. اگر میری بات یہ بھی نہیں سمجھی تو کم از کم اتنا سمجھ لو کہ آپ چاہتے کہ آپ بہن کو اس کا شوہر کتنا برداشت کرے, بس اتنا اپنے بیویوں کو برداشت کرنا چالو کرو. سمپل ہے باٹم. میں چاہتا ہوں بھائی تھوڑا میری بہن گرم دماغ کی تو برداشت کر لینا چاہیے نا میرے بہن. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے نا, میں بھی کیا کروں اپنے کو حق دے دوں, تھوڑا وقت تم بولے نا بیگم برداشت, کیونکہ جس فطرت پر یہ بنی فطرت پر وہ بنی. میں نے مثال کی کہ اپنی بات پھر آدمی جلدی سمجھ آتی, پرسنل بات کم از کم رائٹ. تو ہم لوگ اپنے مزاج, ایک دوسرے کی بناوٹ, کچھ خامیاں پارٹ آف نیچر اس کو ہم نظر انداز, کچھ چیزیں خوبیاں پارٹ آف نیچر ہے, سراہ ہے کہ ہاں یہ ماشاءاللہ بہت ہے لیکن یہاں کمزوری, بٹ یو کین, تم کر سکتے ہو, بڑھتے رہو آگے, میں تمہارے ساتھ ہوں, میں تمہارے ساتھ. سمجھ رہے بات, تو تب معاملہ چلنے والا ہے. لیکن اگر دونوں اپنے رائٹس سے رہیں گے جو آج ہو رہا ہے, اور ڈیوٹیز بھول جائیں گے, مطلب حقوق تو مانگیں گے اور ذمہ داریاں نہیں ادا کریں گے, تو وہی ہوگا جو ہو رہا ہے. سماج کرپٹ ہوتا جائے گا, سماج برائی کی طرف جائیں گا, آنے والی نسل بگڑ جائیں گی. ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد حالت یہ ہو جائے جو ویسٹ میں حالت ہو گئے, شادی کے انسٹیٹیوشن کو بھول چکے ہیں, وہ میرج کے انسٹیٹیوشن کو, نکاح کے سسٹم کو بھول چکے ہیں. یہی وجوہات کی بنیاد پر کہ وہ کھٹپٹ وہ برداشت سے نہیں ہو رہی تھی, وہ دونوں ایک دوسرے کو بالکل ایک دوسرے کے برابر سے برابر سمجھنے کے نتیجے میں شوہر کو ایک دن میں کام کروں, تم ایک دن کام کر کے لانا, وہ نہیں سمجھتا اس کا مزاج چھوڑا ہے, اس کا مزاج چھوڑا ہے. نتیجتاً اتنی کھٹپٹ ہوئی کہ انہوں نے میرج کے انسٹیٹیوشن کو چھوڑ دیا, کہا جتنا ساتھ رہنا ہے رہو, چھوڑ دیا. شادی کریں گے طلاق, وہ لمبا پروسیس ہے, ساتھ رہو اور چھوڑ, بچے پیدا ہوں گے, بول دینا فادر جینیٹیکل مدر. سمجھ رہے ہیں, مطلب تمہارا جینیٹیکل کوئی باپ کا نام نہیں, باپ ہے جینیٹیکل فادر لکھا ہوا ہوتا. بہت سارے جگہ اگر آپ یو ایس کے میں کوئی اسکول کا فارم دیکھا ہوگا, باپ کا نام کمپلسری نہیں ہوتا ہے, کیونکہ میرج انسٹیٹیوشن نہیں ہے, وہاں جینیٹیکل فادر ہوتا, کوئی ضرورت نہیں ہوتی, مطلب ضروری نہیں ہے. اور سنگل پیرنٹنگ والا سسٹم ہے, یا تو وہ بچہ جو ہوتا ہے عورت لے جاتی ہے یا شوہر لے جاتا ہے, مطلب شوہر تو نہیں بولیں خیر وہ مرد لے جاتا ہے اس کے ساتھ میں. تو سنگل پیرنٹنگ مطلب ایک ہی باپ پالتا ہے یا ماں پالتا ہے. ہم کو اس انسٹیٹیوشن کو اگر بات, تو اس کے اندر جو انڈیویجول انوالو ہے کے اندر, میرج نہیں اور بیوی انوالو ہے نا سسٹم شادی میں, وہ دونوں کو اپنے رائٹ سمجھنا ہوگا, اس کے ثمرات, اس کے ریزلٹ کے فائدے اٹھائیں گے, ورنہ پھر کرپشن اور برائی اللہ رحم پھر وہ بڑھتی جائیں گے. تو آئیے مثالی شوہر کیسا ہو اور مثالی بھی کیسے, میں آپ کے سامنے بات بولنے والا آپ کے سامنے ایک مرد ہے لیکن ان بایس بات کروں گا. یہ نہیں سوچا رہے فضل دیکھو اپنی بات برابر دی, ہماری بات ایسا نہیں. ان بایس مطلب میں جو بات ہے جتنے پوائنٹس ادھر جمع کیا اتنی پوائنٹ میں نے ادھر پہ جمع کیا, تاکہ ادھر کی مثالیں آئے ادھر کی مثالیں آئے, یہ کچھ سمجھے تو ادھر بھی کچھ بات سمجھ میں, دونوں کی باتیں میں آپ کے سامنے. چلیے آئیے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے مثالی شوہر کیا, اور اس کے بعد مثالی کیا خوب چاہیے, دونوں باتیں دیکھ کرتے ہیں. تو آئیے سے پہلے ایک مثالی شوہر کیسا ہو اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف روایت میں الفاظ ادا کیے. پورے الفاظ میں جمع نہیں کر پایا, جو مجھے میجر اور امپورٹنٹ لکھ دیا. اس کے علاوہ مطالعہ کریں, اسٹڈی کریں تو اور بھی اچھی اچھی باتیں آپ کو انشاءاللہ ٹاپک ضرور. آئیے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایتیں, میں نے اس میں کوئی ترتیب بھی نہیں, مطلب جو میں پہلا لے رہا ہوں پہلا امپورٹنٹ, بس میں نے رینڈملی جو نکات میں آئے وہ جمع کر لی ہے. تو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت دیکھیں کہ مثالی خوبی میں وہ خوبی دیکھیں, وہ یہ کہ بیوی سے حسن سلوک کرنے والا بہترین شوہر, بیوی سے حسن سلوک کرنے والا, بیوی سے اچھا سلوک کرنے والا بہترین, ٹھیک ہے, اچھا سلوک کرنے والا. جامع ترمذی کی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں عائشہ کی راویہ وہ کہتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے اچھا ہو, اور میں تم سب میں اپنے اہل و عیال سے زیادہ اچھا. بہترین شوہر وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہو, اور میں آپ سے فرما رہے تم میں سب سے اچھا ہوں اپنے گھر والوں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کے ازواج تھے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو گھر والوں سب سے اچھا ہو, مطلب بیوی سے پہلا اس کا رائٹ ہے, اور بچے ان سے اچھا ہو, اور میں تم سب کے اندر اپنے گھر والوں میں سب سے اچھا ہوں. تو اچھا انسان وہ ہے, اچھا شوہر وہ ہے جو اس نے سلوک کرتا ہو ساتھ, اس میں ہر چیز انکلوڈ, جو کھاتا ہو اس کو کھلاتا ہو, جو پہنتا ہو اس کو پہناتا ہو, اس کے خرچ اٹھاتا ہو, ٹھیک ہے, اور جو کچھ اس کے لیے جو شریعت نے باندھا وہ سب اس کو دیتا ہو, اس سے اچھے سے بات کرتا ہو, خام و خانی ڈالتا ہو, جھڑکتا نہ ہو, بغیر ضرورت ہمیشہ جو ہے اس کو کہیں گے اینگری ینگ میں بن کے نہیں گھومتا, مطلب اس کے رائٹ دیتا ہو. ہمارے پاس حال شوہر ہونے کا سب سے بڑا جو طریقہ یا سب سے اہم ذریعہ بتانے کا وہ یہ کہ ہمیشہ غصے میں رہو. کسی نے سکھا دیا کہ بیوقوف دوست ہوتے ساتھ غصے میں رہنا ہمیشہ, مرد کیا آتے میرے کو تو نہیں سمجھ میں ایسا کوئی رول کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں رہتے تھے, جبکہ یقیناً آپ جیسے مرد نے اس سے پہلے دیکھا نا, اس کے بعد دیکھی, سمجھ رہے ہیں, ابھی وقت نہیں ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بار ایک شخص آئے, رکانہ بن عبد یزید ان کا نام تھا, مردانگی کی بات ہو رہی تھی, سال دے رہا ہوں. رکانہ بن عبد یزید ابھی مسلمان تھے اور یہ زبردست کشتی میں بہت ماہر. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت, جب مدینے نے کہا محمد آئے, وہ نبوت کا دعویٰ کر ایمان لا لو ان پر, تو کہا دو ہاتھ کر لو محمد کو, میرے سے جیت گئے تو ایمان لا لو, ہار گئے تو کوئی مسئلہ نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھیک ہو جائے دو ہاتھ. روایت میں آتا ہے جب صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے تو پیچھے سے آپ دکھ بھی نہیں رہتے. رکانہ اتنے بڑے, مطلب جسامت کے اعتبار سے اتنے ہیوی ڈیل ڈال کے تھے کہ اللہ کے بیک سائڈ والوں نہیں رہتے کھڑے ہوئے سامنے, چلو آ جاؤ. ابھی رکانہ نے پہلا اسٹیپ بھی نہیں رہتا, آپ سے پچھاڑ دیا, رکانہ نیچے سے ایک دم میں آ گیا, کیا ہوا, رکانہ تم ہار گئے. ایک ہی جھٹکے میں آپ نے رکانہ کے اسٹیپ لینے سے پہلے آپ بھی کر دیا. مطلب سے بھی بات پتا چلی آدمی کا بڑا ہونا نہیں ہے, دماغ سے آپ نے جو چال چلی,
दाव चलाना, दाव सबसे पहले गिर गया। रुको एक मिनट, ये तो जादू था, पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरे ऊपर अब के मतलब माहिर एक पहलवान को ऐसा करने नहीं, तो भी हुआ, फिर से वंस मोर सेकंड टाइम हुआ, सेम रुकाना की स्टेप लेने के बाद उनको चीट कर दिया, तो भी और होने, फिर से एक बार, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं हार गया। थर्ड टाइम हुआ, फिर आगे लोगों ने कहा 3 बार गिरे हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फास्ट और साथ में टेक्निक इतनी एडवांस की, रुकाना के स्टेप से पहले रुकाना नहीं, समझ रहा, मर्दानगी ये है। तो आप सब पीछे नहीं, फिजिकल आप ले लीजिए, फिटनेस आप जो है लोगों से, लेकिन इसके बावजूद इतने नरम थे। तो सख्त होने से वो आदमी मर्द नहीं था और कोई शौहर में आया था अच्छा, क्योंकि दुनिया का सबसे अच्छा शौहर सख्ती था अपने मिजाज में। हालांकि जिस्मानी एतबार से बहुत ताकत, लेकिन सख्ती नहीं थी, मिजाज नरमी थी, बल्कि लोगों को ताकीद करते थे। एक बार आपके गुलाम अंजशा तेजी से लेके जिन पालकियों में जो औरतें, तो कहा अंजशा तुम शीशे जैसी नाजुक औरतों के साथ कर रहे हो, मतलब औरतों को आपने शीशे जैसा कहा, शीशे को बहुत संभालना पड़ता है ना, तो कहा शीशे जैसी नाजुक औरत के साथ अंजशा तुम लेके भाग रहे हो, हमसे चलो, लेकर चलो, संभाल के रखो, नाजुक चीज है। मतलब आपने औरत का इंतजाम बताया कि संभाल के लेके, तो बहरहाल उसने सुलूक, अच्छा बर्ताव, अच्छा ट्रीटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये मिसाली शौहर की पहली सीख में आपने रख रहा हूँ। हाकिम की रिवायत है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम में से बेहतर शख्स वो है जो अपनी औरतों के लिए अच्छा हो। तुम में से बेहतर शख्स वो है जो अपनी औरतों के लिए, मतलब बीवी के लिए अच्छा हो। तो पता चला अगर मर्द का कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए तो कोई और नहीं दे सकता, कौन दे सकती है? उसकी बीवी बताएंगी। और अगर वो कहती है अच्छा है तो वो अच्छा, और वो कहती है अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। तो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके वाइफ के हाथ, वो बताएंगी। आदमी लोग बाहर तो कहलाते और पता नहीं क्या क्या कहलाते, लेकिन घर में आते झड़कते हैं उनसे बातें बीवी, और बाहर लोगों से आपके अलावा बात वो देंगी सर्टिफिकेट, वाकई में ये मर्द, ये आदमी अच्छा है या बुरा है, ये मिसाली है। ये देखिए एक बीवी के साथ अच्छा होना एक इंसान के लिए इतना ज्यादा जरूरी है। ठीक, इसी तरह एक मिसाली शौहर के अंदर जो सिफत होती है वो ये है कि आजमाइश मुसीबतों में जो है मिसाली शौहर, एक हस्बैंड जो है वो सब्र, किसी भी किस्म की आजमाइश, किसी भी किस्म की आने वाली मुसीबतों में, याद रखिए एक मिसाली शौहर जो है सब्र करता है, चाहे वो तकलीफ से आजमाया जाए, चाहे वो बेटियों के जरिए आजमाया जाए। बेटियों को बुरी कोई मुसीबत नहीं है, लेकिन आज के जमाने में ये शादियों को इतना मुश्किल कर दिया गया, जाहिर सी बात है एक मर्द के लिए वो आजमाइश जैसी हो जाती है। अल्लाह जाहिर सी बात का अजर, वो सब्र करता है, तहम्मुल रखता है, बर्दाश्त करता है, बुरा नहीं बोलता है या कोसता नहीं, बल्कि वो जिम्मेदारियों को जो है अपने जो है निभाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत दी है। जामे की रिवायत है, आयशा की राविया वो फरमाती कहती है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स बेटियों की वजह से आजमाया गया हो और इसने इन पर सब्र किया हो, वो बेटियां उस बाप के लिए आंख रुकावट। तो गोया एक आदमी बेटियों की पैदाइश पर, परवरिश में, उसके ब्याह में सब्र करता है, ये एक मिसाली अलामत है। वरना हमारे पास शादी होते ही अगर लड़की हो जाए तो क्या बेचारी औरत को, जबकि इसका कोई शुरहात नहीं होता, सास क्या कर दी, बेटी पैदा कर जरूरत, बेटों की बात आगे बना है। तो मैं हमेशा कहता हूँ उन सासों से जो अपनी बहुओं को बेटी पूछती है, साइंसी एतबार से साइंस ये है कि औरत का सेट ही नहीं होता है जिससे लड़का या लड़की तय होते हैं, लड़का और लड़की तय होते हैं मर्द के जरिए जो मनी औरत तक तकता है। देखिए लड़की जब पैदा होती, क्रोमोसोम्स के एक्स सेट औरत के और एक्स सेट जो मर्द से आते हैं मिल जाते हैं, लड़की पैदा होती है। और मर्द में ये सलाहियत है कि एक्स और वाई दोनों होते हैं, औरत सिर्फ एक्स होता है। और अगर औरत का एक्स और मर्द का वाई मिल जाए तो लड़का पैदा होता है। तो अगर कभी को लड़की हो तो उस सास कहता हूँ, उस दादी को कि अपनी को मत कोसो, अपने बेटे को बेटा एक लड़का नहीं पैदा कर। उस बेचारी का तो कुछ है ना, वो तो सिर्फ रेसिपिएंट है, वो तो सिर्फ परवरिश करती है, हमल को संभालती, पैदाइश, लेकिन उसके अंदर साइंसी एतबार से वो सलाहियत, वो मादा नहीं होता जिसे लड़का या लड़की तय होना। वो भी मर्द भी तय नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है वो अल्लाह तय करता है। बट अगर उनको इतना ही कोसना है तो अपने लड़कों की क्या बेटे अभी भी लड़की क्या, ठीक है, उसको मत बोलो उसका, ठीक है। तो बहरहाल ऐसा इंसान जो लड़की से आजमाया था, सब्र करता है, एक अच्छा मिसाली बहना चौर है। इसी तरह बीवी के मामले में दरगुजर करने वाला, नरमी से काम लेने वाला, नीज बीवी के हक में खैर और भलाई की बात को कबूल करने वाला शख्स अच्छा, खैर और भलाई की बात करने की बात में, इसलिए कि हर इंसान में प्रोज कौन सी अच्छाई और बुराइयां होती, तो कभी भी हमको तोलना चाहिए कि अच्छाइयां की बुराइयां, अच्छाइयों की तारीफ करे और बुराइयों की इस्लाह करे, बुराइयों को पेरते ना फिरे, इस्लाह करे। बहुत से लोग तो इस दर्जे गए गुजरे होते हैं कि शाम में जाके अपने दोस्तों से डिग्री करते, यार मुझे भी खाना बनाना नहीं आता, लेकिन ये इस्लाह का पॉइंट था, दोस्तों बताने की जरूरत। अब अगली बार मूड खराब है तो उसका भाभी खाना बनाना नहीं आता है, वो घर पे जाके बोल रहा है उसकी खाना बनाना नहीं आता, आपने उसको बदनाम कर दिया अपने समाज में। फिर अब बोलते हो बुरा शुरू कर दिया, अब तो पहले खाली खराब बनाती, तब तो तेजी बनाती, नमक भी ज्यादा डालती, गोश्त जला देती, तो आपने बदनामी क्यों करी, उसकी अच्छाई को कबूल कर। अच्छा हमारे में खामी क्या है मालूम, हम लोगों की बुराई पे तनकीद जरूर करते हैं, ये आपने खराबी है, लेकिन उनकी अच्छाई पे तारीफ करना भूल जाते, माशाल्लाह ये तो खैर को आप कबूल कीजिए, जो बात पसंद की इस्लाह, दोनों चीजें। आइए हदीस के अल्फाज की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की रावी फरमाते कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है, इसे जब कोई मामला दरपेश हो तो भलाई की बात करे वरना खामोश रहे। लोगों औरतों के हक में खैर और भलाई को कबूल करो। याद रखो औरतें पसली से पैदा की गई है और पसली में सबसे टेढ़े हिस्से, ऊपर की पसली से आदम अलैहिस्सलाम की हवा को बनाया था अल्लाह ताला ने, उससे पैदा की गई है, ठीक है। अगर तुम सीधा करना चाहोगे तोड़ डालोगे और अगर वैसे ही छोड़ दोगे तो वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेंगी। लिहाजा इनके हक में खैर और भलाई, मतलब औरत की कजी
उसकी कमजोरी को बता देगा, उसके मिजाज में कुछ चीजें होंगी जो तुमको कभी पसंद नहीं है, बट उसके उस पार्ट को, की खैर को हमेशा कबूल करो और एतराफ करो, एतराफ एक्सेप्ट करो कि ये तो पार्ट बहुत अच्छा है, ये पार्ट में इस्लाह की शायद जरूरत है, बट मुझे पता है आप नाउमीद नहीं। तो आप देखिए कैसा माशरा होगा कि बीवी ने गलती की, चल कर रखो बात, उसकी इस्लाह कर लेंगे और आगे बात। समझ रहे हैं बात? बीवी ने कोई अच्छा काम किया, माशाअल्लाह आज तो आपने बड़ा अच्छा काम किया, देखिए कल वो डबल कर दिया काम। समझ रहे हैं बात? जो एक अच्छा HR बोलेंगे, ह्यूमन रिसोर्स जो इंसानों को डील करता है कंपनी में, वो होता है जो जानता है उस काम कैसे निकालना, उसको पता है कि काम कैसे। तो जाहिर सी बात है आप लोगों को उनके मिजाज के एतबार से डील कीजिए। तो अल्लाह के रसूल बता दिया, उनमें कजी है, टेढ़ापन है, बुराई के नाते नहीं, रियलिटी को बताया गया, हकीकतों को बताया। रब्बुल समझ बात? तो तुम क्या करो, खैर को कबूल किया करो और ज्यादा वो करो। एक रिवायत में इसका ज्यादा सीधे करना, जो सीधे करोगे टूट जाएंगे। काबा ने पूछा इससे मुराद तो काफी तलाक साथ ले, मतलब एक लिमिट है बस, ज्यादा तलाक की भी हद। इस चीज को मुझे आप सुनाएं। ये बात कभी कभार जब यंग हो शादी कर, जब समझ नहीं आती, लेकिन जब आपको बच्चियां होती है और आप जब उनमें वो देखते हैं तो कहते हैं अल्लाह इसको कबूल कर, इसमें प्रॉब्लम। ये भी एक औरत जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो चाहिए जब ये बच्ची हमारे निकाह में आती है करो कि हाँ ये है, ये उसके जेंडर के एतबार से अल्लाह बनाया मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अहलो अयाल पर खर्च करने वाला एक अच्छा शौहर होता है। अहलो अयाल बीवी बच्चों पे कुछ दिली से खर्च करने वाला अच्छा शौहर होता है। जो कि मैंने ऐसे बहुत सारे लोग जो बड़े कंजूस होते हैं, याद रखें, और किसी पे खर्च, देखिए खुद खाते भी खिलाते, वो चीजें खुद पहनते भी पहना, जबकि हदीस ये हक बताया गया जो तुम खाओ उसे खिलाओ, जो तुम पहनो उसे पहनाओ, मतलब उसका भी राइट। समझ रहा बात? तो आप करना चाहिए, हमने करना चाहिए। सही मुस्लिम की रिवायत, अबू मसूद अंसारी रज़ियल्लाहु फरमाते और कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये रिवायत तिरमिज़ी की, आदमी को अपने अहलो अहल पे खर्च करना सदका है और जो भी वो अपने बीवी पे खर्च करता वो सदका है, उसका भी इंसान को बड़ा अज्र मिलता है। आइए एक मिसाली शौहर की और एक भी जानिए, वो ये है कि मिसाली शौहर अपने घर के काम काज में हाथ बटाता है। अब बीवी के काम काज में हाथ बटाना बोले तो ये तो गुमान से भी बाहर। अगर बीवी के साथ काम कर लिया तो अम्मी का कमेंट जो आने वाला जहरीला, वो कमेंट से परेशान रहता बच्चा। शौहर क्या बोलेंगे अम्मी, अरे मेरा बेटा तो टर्म जरा गलत है लेकिन जोरूगा गुलाम बन। समझ रहा, वो खतरनाक जहरीला कमेंट, फिर बहनों का कमेंट आने वाला। लेकिन माशाल्लाह बहनों के शौहर तो बहनों को चप्पल ही बना के भेजते, अम्मी के पास जा रहे थे, वो कबूल है, वहां नहीं कमेंट कुछ भी, हालांकि रिश्ता तो वही है ना। लेकिन अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइडियल ये है ना, आइडियल अम्मी है ना अब्बा, अगर वो कुरान और सुन्नत पे तो सारा, किसी के वालिदैन अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे है तो वो आबा अजदाद के तरीके पे चले, लेकिन अबू जहल जैसे छोड़ना पड़ेगा उनको। सिंपल है ना, फैक्ट। हक पर है तो बात बढ़ो, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, चाहे पहचान वाले चाहे अजनबी हो, अपनी जमात को गैर जमात को, अपना मसला गैर मसला, हक बात है मान लेना, ये एक मोमिन की सिफत। लेकिन गलत है तो गलत है, चाहे बड़े करो छोटे करो, चाहे सब करो। चाहे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से सवाल किया गया, बुखारी की रिवायत में आयशा से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में क्या करते, आप अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते? तुम आयशा फरमाती नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदर हमारे काम काज में हाथ बटाते। एक रिवायत को तो यहाँ तक अल्फाज बकरी का दूध धोकर लाते, अपने जूते को अगर खराब हो जाता तो खुद पेवन दे देते, और अपने कपड़ों को जो फटे हुए होते खुद सीते। हाँ, लेकिन अजान हो तो फौरन आप सब काम कर चले जाते। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में क्या करते? अपने घर में अपने बीवी के काम में क्या करते? क्या करते? मदद करते। हमारे पास मर्द बोले तो क्या है, हर काम बीवी से लेना, अगर बीमार है मर रही भी बोला उठ भी तेको करना है, वरना मेरी बहनें और मेरे अम्मा मार डाली मेरे को अगर मैं काम करूंगा तो तेको करना। सुभान अल्लाह, कैसे हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी खुश, और आप अपनी बेगमात काम में हाथ बटा। सुभान अल्लाह, आप देखिए कैसे नबी मुशफिक है औरतों के, हाथ बटा, खुद दूध धो लेते हैं, खुद अपने कपड़ों की लेते फट जाते हैं। ऐसे कितने मर्द हैं जो अगर फट जाए एक बटन भी निकल जाता है अपना, उनको जरूरत रहती है अरे बेटा बेगम नहीं करना, पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं होता यार। ठीक, तो आप हमको ये चीज सीखना है याद, हमको इस बात को समझना है, आपको हाथ बटाना है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आप काम का अच्छा बोले मैं बीवी के साथ ही काम करूँ, घर में एक भी दो बीवी हो गए, ये मीनिंग नहीं है। रिकामा है कुछ करना नहीं तो अच्छा हदीस बहाना घर में, मतलब ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम का जिम्मेदारियां सारी अदा करके जब घर लौट आते नहीं होते थे, अपने के काम में हाथ बटाते थे। इससे मोहब्बत बढ़ती है, इससे उल्फत बढ़ती है, इससे अपनायत बढ़ती है, इससे बीवी को लगता है मेरा काम भी इंपॉर्टेंट है, मेरा शौहर पाट लेता है। इससे शौहर को ये पता चलता है कि डेली रूटीन में मेरी बीवी कितनी तकलीफें उठाती है, काम काज समझ में आता है, एक्सपीरियंस होता है। कभी कभी होता है लोग बोलते हैं अरे ये काम तो बहुत आसान है, लेकिन एक दिन करना पड़े तो बोलते अल्लाह रहम करे भाई उसमें वही कर सकता अपने से। हम समझते हैं हम कमा के लाते हम ही सब कुछ है, तो बच्चों को जो पालती ना, एक घंटा बच्चे को संभाल लीजिए अपने खुद के, आप बोलते अल्लाह मेरे थोड़े बहुत बाल बच्चे वो भी चल जाते हैं, इसकी माँ इसको बर्दाश्त की, दिस आउट ऑफ माय लिमिट, मेरे तो हद से बाहर है, ये होता है ना। आप देखिए उनकी भी अपने काम, हमारी भी अपनी, औरत भी, शौहर जो काम करता है वो उनके लिए हलाल रोजी के लिए करता है, वो भी मशक्कत कर रहा है, मोहब्बत की अलामत है। बीवियां घर बच्चों को पाल रही है, आप खाना बना रही है, रोजमर्रा के काम कर रही है। कुछ औरतों को मैंने ये भी देखा वो काम भी करती बाहर का, तो घर कब करती, डबल ड्यूटी, काम में हाथ बटाई, काम में हाथ। फिर देखिए कैसा माहौल बनता है, कैसा एक माशरा बनता है, लोग एक दूसरे को ताउन कर रहे हैं। हम ये तो बात कर रहे हैं मिस्किनों की मदद करो, बेवाओं की मदद करो, अरे घर में जो पहले वो तो है ही मुस्तहक, ये भी है ना, पूरी मोहब्बत प्यार सब बाहर ही चल रहा होता है ना, सदका करो, सब कुछ सदका कर रहा, लेकिन भी बच्चों का जिक्र तो बहरे आलम जाता, काम में हाथ बटाए एक साल शौहर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया कर बताया। मैं आपको ये नहीं बोल ये काम करने से मेरा मुकाम मिल जाएगा, ये सब छोड़
छोड़िए, जब पुरानी बात है तो यहाँ तक लोगों को देखा अपने के बच्चे जब तक पेशाब और पैखाना नहीं करते वो गोद में भी नहीं लेते। तो बोले मर्दों काम हाँ देखा हूँ मैंने ऐसे हालात देखा हूँ, बच्चे जब तक पेशाब पैखाना खुद नहीं करते बाप गोद में भी नहीं लेता। क्यों? तो मर्दों की अलावा तो बच्चों को गोद में नहीं लेते हैं, साथ नहीं रखते हैं अपने, मालूम? हाँ, मर्द होने के नाते बोले मर्द नाते मर्द रो सकता है ना, रोते बार बार रोते, जगह जगह आप रोए, रात में आप दुआओं में आप रोए, लोग आके सवालात तो रोए। एक सहाबिया का अल्लाह के रसूल ने 3 लड़की को दफना दिया था ईमान लाने से पहले, और वो भी रो रहे, आप भी रो रहे, फला मौके पे रो रहे, यहाँ वहाँ क्या आपकी आंखें भाई, यहाँ आपने आंसू बहाए, वहाँ आपको रोते हुए देखा गया, ये जंग पहले आपने क्या, इतने जगह रो रहे हैं। कौन कह रहा है कि एक मर्द रोने का? इसलिए एक बार तो सहाबा ने नबी अल्लाह को रोते हुए देखा तो अल्लाह के रसूल आप रोते, तो रहम की अलामत इंसान की आंखों से आंसू निकले। ठीक है, हमने पता नहीं क्या मिसाली शौहर की क्या क्या एग्जांपल्स और कहां से लाके सेट कर लिया, और गाउटी नहीं बताया, मुझे समझ नहीं आता। लेमैन जंगली और जाहिल ने बता दिया कि ये नहीं अलामत, ये नहीं अलामत, ये नहीं अलामत। अपने डिजाइन अपने तौर से मत करो, अपने माशरे के एतबार से मत कैसा हो डिजाइन करो, शौहर ऐसा हो, ये नबी की जिंदगी देखना, ये है मिसाली, ऐसा होता है, ऐसा रहना चाहिए। आप जहां तक उसका मैक्सिमम पॉसिबल देने करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आइए। खुश अखलाक और खुश तबई, खुश अखलाक और तबीयत खुश रहने वाला, ये एक मिसाली शौहर होता है, याद रखें। मुस्नद अबू याला की रिवायत है, मैं आयशा से फरमाती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा अजीब और गरीब वाकया सुनिए, तफसील में नहीं जाऊंगा, बहुत मुख्तसर बढ़ो। वाकया ये कि आयशा हरीरा बनाकर ला नबी अकरम की खिदमत में रखा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सौदा की दूसरी बीवी के घर में, मतलब आपस में सौकन वाला रिश्ता। मैं आयशा लेकर आती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच में है, हज़रत सौदा एक तरफ से, आयशा एक तरफ। आयशा रज़ी अल्लाह की कहती है आप नबी अकरम से, फिर कहती सौदा तुम भी पियो, वो कहती मैंने भी। मैं आयशा थोड़ी गैरत आ मतलब कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम कैसे? सौदा मैं कह रही पीना पड़ेगा, अगर नहीं पिए तो ये हरीरा लेके तुम्हारे मुंह पे लताड़ होता है ना, दो औरतों में। सौदा ने कहा नहीं पियो, उसके बाद भी इन्होंने हरीरा उठाया, हाथ डाला और उस पे मल, कहा ये जाओ। और नबी अकरम हंसते चले। फिर अल्लाह के रसूल ने आयशा की तरफ इशारा किया और वो समझ गई, आयशा खड़ी हो गई थी, लपेट मारी, आयशा घुटनों पे अपने नीचे घुटने टेक कर बैठ गई। सौदा ने हाथ डाला और उनके सर पे मल दिया। एक रिवायत से लिया और कहा हरीरा तो ये अच्छा बना, और सब हंस रहे। अल्लाह के रसूल हंस रहे हैं, उस वाकये में उन्होंने पहले लगाया तो सेकंड है आयशा को उन्होंने सर पे लगाया, तब भी हंस रहे हैं सब। कैसे रिलेशनशिप में देखिए आप, खुश तबई, खुश मिजाज। हालांकि झगड़े और घर भी बन सकता था, ये मसला जो है झगड़ा भी ला सकता, लेकिन आपने हंसने की वजह से इन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया। आपने कहा जवाबी कार्रवाई कर दो, इशारे में कहा आयशा नीचे बैठो, आयशा ने घुटने टेक दिए, हज़रत सौदा ने उठाया उनके सर पे लगा दिया, मामला रफा दफा, और हंस रहे हैं, खुश तबीयत, खुश तब। हालांकि हज़रत सौदा उम्र में आयशा से काफी बड़ी, डील डॉल जसामत में भी काफी बड़ी, लेकिन उसके बावजूद हज़रत आयशा छोटी की उम्र, लेकिन आपस में रिलेशन और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिचुएशन को स्पेसिफाई करना, बिल्कुल मामले को खत्म, हंस देना, समझ रहे हैं बात? तो आप देखिए खुश मिजाज। हमारे पास तो आलिया गुस्सा एकदम क्या बोलते लोग, नाक पे, अब नाक हो तो बोल सकता है एकदम, वो भी गोल है, उसमें बोले गुस्सा है, पर टिकता कैसा उस पर गुस्सा बोले कैसा रहता मेरे को नहीं मालूम, अगर वाकई में रहता काट दो, ठीक मत रखो, इसलिए कि गुस्सा अक्सर फितनों की जड़ है। मेरा एक मर्तबा जाना हुआ, एक जेल के अंदर तकरीर हुई, उसके बाद मैंने उससे जब बात की, जो लोग अंदर थे, पता चला अक्सर के जेल आने की वजह से गुस्से में खत, गुस्से में जिना, गुस्से में बदला लेने की, आग में फुला निकाल दीजिए, खत्म कर दीजिए, नाक पे तो नाक, मतलब गुस्से खामोखा गैर बेगुनी। तो एक शौहर जो मिसाली शौहर होता है, खुश अखलाक होता है, ठीक है, अपने बीवी बच्चों के साथ, बीवी के मामले में खास तौर से याद रखिए, रिवायत कोई बताता है। आइए इसी तरह एक अच्छे शौहर की अलामत ये, छोटी छोटी गलतियों पर वो डांटना दुपट्टा नहीं है और आपे से बाहर, आउट ऑफ कंट्रोल सांड नहीं बन जाता। सांड होता है ना, जरा गुस्सा आ गया तो क्या करता, फिर मुंडी नीचे डालता, सांस छोड़ता और पैर को घसना चालू करता। अब वो आने वाला है, ठीक है, लेकिन आप अगर बार बार ऐसा, तो मुझे बताए बीवियों को आदत हो जाती है, फिर वो भी लाल कपड़ा लेकर इधर, थोड़े दिन चलता हो, थोड़े दिन के बाद फिर वो भी क्या करती है, आया कि हटा देती, इधर जाता, अब आ इधर आ, इधर जाता, इधर अब्बा का हुल, इधर बेटे का हुल, इधर बच्चियों को बोल दूंगी हुल, उधर वहां बोल तुम यहाँ बता दे, इधर बाहर, इधर घर, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गुस्सा नहीं, छोटी छोटी बातों पर तो आपस से बाहर वाली नहीं आता। और एक मर्द शान के खिलाफ भी है कि छोटी छोटी बातों पर आप, मर्द में वो जो बुर्दबारी, इसलिए अल्लाह ने मर्द को तलाक दिया, क्योंकि उसमें जो बुर्दबारी होती है, सोच होती है, समझ होती है, छोटी बातों पर गुस्सा नहीं होता है, उसके एहसास इतने जल्दी ऊपर और नीचे से नहीं आते, जिसके नतीजे का तलाक को दिया गया। तो एहसास बहुत जल्दी आ जाती है, 2 मिनट में रो देती तो 2 मिनट बाद कुछ भी हो जाता है, अभी तो नहीं बच्चा, 1 मिनट पहले बोली अरे वो आदमी मेरे को डेंजर लगते हैं ऐसे वैसे, एक आधे घंटे बाद अरे उनसे नेक तो कोई भी नहीं, अरे बेगम आधा घंटा नहीं, जब मेरे को ऐसा लगा था वैसा लगा। स्विंग्स रहते मूड के, मर्दों में नहीं, लेकिन उनके अंदर हिल रहता है, बुर्दबारी रहती, मिजाज होता है, इसीलिए आपको इतनी जल्दी आपे से बाहर निकल। बुखारी की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी खाने में ऐब नहीं निकाला, और पसंद आए तो खा लेते, ना पसंद आए तो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करते। इसलिए मैंने साल लगा, अक्सर झगड़े कहाँ हो रहे शुरू, मैं इतना थकिया और खाने में नमक ज्यादा, तो आप उस दिन खा के बोल चलता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहहरात से कुछ खाना है, कुछ खाना है, एक ने कहा सिरका है, खाना नहीं है, मैंने कहा सिरका है, तो आपने कहा दो, आपने सिरका खाया रोटी से, रिवायत में अल्फाज है आप सिरका खाते जाते और कहते सिरका क्या ही बेहतरीन सालन है, सिरका क्या ही बेहतर, सिरका खट्टा होता है, लेकिन आप रोटी से खा रहे करे क्या ही बेहतरीन सालन है। अब ये हम लोगों के लिए मिसाल है, जो लोग छोटी बातों पर अपने एकदम आप ऐसे बाहर, ऐसा आप ऐसे होटल में जाके बताओ वेटर को, जब खाना उसने लाया नमक वाला, खाली अरे भाई नमक ज्यादा हो गया, बिल नहीं दूंगा, लेकिन वो सब बोलो जो बोलते क्यों, जब आप बाहर नहीं करते यहाँ क्यों मिजाज रखे, और थोड़ा वो कीजिए। तो बहर यार छोटी छोटी बातों पर आप बाहर नहीं जाते
जाता एक अच्छे जो है शौहर की अलामत है। इसी तरह जो है एक अच्छा शौहर जो है बीवी तो बीवी की सहेलियों से उसके रिश्तेदारों से बचा, बीवी से तो करता ही। माई आयशा की रिवायत, आखिरी रिवायत तवील रिवायत, माई आयशा ने एक मतलब अल्लाह से कहा, एक बुढ़िया आपके पास बड़ा इज्जत एहतराम करते, आपसे कैसे हो, कैसा चल रहा है, हमारे मक्के से निकलने के बाद अब वहाँ मामला कैसा है कौन ही बुढ़ी औरत, इस पे इतना, और वो दुआएं देते, वो कहती है अल्लाह के लाभ पर मेरे माँ बाप सब अच्छे हैं, कौन है वो? तो कहा ये खदीजा के जमाने में हमारे पास आती सहेली। तो देखिए आप, बीवी सहेली, जो बीवी इंतकाल करती है उससे इतनी अच्छी बात है, ये तो खदीजा के दौर से, तो बीवी उसके सहेलियों से। लेकिन हमारे पास कभी प्रॉब्लम ये है, बोले सहेलियों से अच्छे रहते हैं, मेरे से अच्छे नहीं रहते। लेकिन इन कॉन्टेक्स्ट सारी चीजों इन कॉन्टेक्स्ट करना होता है। मेरे साहब कॉल किए, बोले आपने बोल दिया कि बीवियां तुम्हारे लिए तुम्हारा लिबास के लिबास हो, तो मेरी बीवी बोले दोनों के हक बराबर है। कैसे? तो बोले लिबास बराबर है मेरे और मैं तुम्हारी। कुरान क्या है, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी लिबास है, तुम उनके लिबास हो, दोनों बराबर हो गए। मैंने कहा देखो वो अपनी मनमानी तफसीर कर रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मतलब इस एतबार से कि एक दूसरे को ऐब छुपाने के एतबार से, शर्मगाह की हिफाजत के एतबार से बराबर कुरान की आयत था, तो मनमाने कॉन्टेक्स्ट निकाल दिया। ठीक, आइए इसी तरह एक अच्छा शौहर की पति है कि बीवी के साथ दूर अंदेशी काम लेता है, नजदीकी नहीं देखता, दूर अंदेशी काम लेता है। ठीक, हमारे पास ये कि बिल्कुल हाल देखे, दूर अंदेशी आप नहीं देख रहे कि वो आपके लिए कितनी मेहनतें करती है, आपकी तरबियत में क्या, आपके जाने के बाद घर के कामकाज में दूर अंदेश। इसी तरह एक बेहतरीन शौहर की ये सिफत है कि इसके नुक्स की जो है तकमील करता है, अपने बीवी के खामियों को कंप्लीट करने, उसकी इस्लाह करने, उसके नुक्स तकमील करता है, उसके अंदर कोई कमी पाता है, कमजोरी पाता है तो उसको हटाने की कोशिश करता है, उस कमजोरी को खत्म करने की कोशिश करता है, उसमें उसकी इस्लाह करने की करता है। इसी तरह जो है एक अच्छे शौहर की सिफत ये है कि बैक वक्त बीवी को भी खुश रखता है और माँ को भी खुश रखता है। आप बोलेंगे तो बहुत बड़ा बम था ये, एक साथ दो चीज। किसी ने एक बार एक पोस्टर बनाया, 2 डबल डेकर बसेस, डबल वाली होती है ना, डबल डेकर बस में इंजन भी हैवी होता है, 2 डबल डेकर बसेस अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है और एक आदमी भी, उसका एक पैर इधर बंधा हुआ है, एक पैर इधर बंधा हुआ है, पूरा स्ट्रेच हो गया, और इधर लिखा हुआ बीवी, इधर लिखा हुआ है माँ, दोनों अलग डायरेक्शन जा रहे हैं, दोनों बिल्कुल बंधा हुआ है। तो बैलेंस करके चलना है। हमारे पास होता ये अपनी माँ का हक तो हम देना चाहते हैं, हमारे बच्चों की माँ भी तो माँ है, तब वो माँ नहीं है, तो मेरी वालदा तो मेरी वालदा ठीक, मेरी माँ है मेरा, लेकिन मेरी बच्चों की माँ भी तो माँ की दर्जा रख के राइट्स नहीं। शरीयत ने ऐसा कहते हो ये है तो एक को खत्म कर दो और एक को जिंदा रखो। मैं तो ये कहता हूँ अपनी तकमीर कि अगर मेरी माँ एक एम्प्रेस, समझना, महारानी, तो जाहिर सी बात है आप बीवी भी तो रानी से कम नहीं और आपकी बच्चियां प्रिंसेस से कम, तो आप एम्प्रेस को दर्जा दे देंगे, रानी को प्रोसेस, आपको सबको दर्जे देंगे, उधर माँ को, इधर बीवी, इधर बेटी, आपको सबको देना। तो ये नहीं हो सकता, दोनों को बैलेंस देना। और ये कमाल किसका होगा? आप शौहर, ये आपका कमाल होगा। आप ये नहीं हो सकते मम्मी को मैनेज कर लो, ये नहीं बोल सकते आप, तो बेसिक सवाल है, तुम मैनेज नहीं कर पाए, आपको बेचारी क्या करेंगे? होता है ना कभी किसी उनकी बातें उन्होंने जो कह दिया, तो वहां पर हाल ये कि लोग ऐसा कहते हैं कि औरत जुल्म है, प्रैक्टिकली मुझे ऐसा ज्यादा नहीं, थोड़े दिन जुल्म में रहती, बाद में हमको बताया हमारे अब्बा को, प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, होता है ना ऐसा, थोड़े दिन तो ऐसा बताया जाता है, लेकिन बाद में हाल ये बेगम से पूछे बगैर तो काम होते नहीं, प्रैक्टिकल तो बहरहाल हम यही देख बहरहाल बैक वक्त बीवी को भी हो सकता है और माँ को भी हो सकता है, और ये आपकी सलाहियत होगी। याद आप ये करेंगे कि दोनों को मैनेज करेंगे, क्योंकि दोनों जो है हवा की औलाद, आदम की औलाद से, और औरत है, दोनों मिजाज में कजी है, आप दोनों को मैनेज करके लेके चलना, याद रखिए आपका काम है कैसे मैनेज करना। इंशाल्लाह कभी अल्लाह ने मौका दिया जिंदगी जरूर रखूंगा। 3 साल से तो बोलते ही जा रहा हूँ, लेकिन अब तक वो लेक्चर बना नहीं पाया कि बैलेंस कैसे, समाज, माहौल, सोसाइटी, मालदार, गरीब बदलते जाते हैं इशूज, तो एक इशू बोल दो दूसरे हमारे खिलाफ बोल दिया, आप मरता रहे, वो जनरल बात थी, आप अपने ले रहे। दूसरा इशू बोले कि बहुओं पे हक नहीं मिला, तो सासें बोलती है हमारी बहुत जुल्म कर रही है, आपके लिए नहीं, जो सासें करती है उनके लिए बात। बैलेंस देना स्पेशली वीडियो के जरिए होता है, अलग अलग समाज में जाता है और इशूज ही बदलते हैं। इंडिया में इशू क्या माना, आपको सास बहू का झगड़ा है, लेकिन फॉरेन में जाएंगे तो आपको किसका होता है, सास और दामाद के झगड़े होते हैं। तेरे झगड़े की ससुर बोलता तुम मिलना नहीं दामाद। हमारे पास का इशू अलग है इंडिया में, सास बहू का, लेकिन वहाँ दामाद और आप देखिए सन इन लॉ एंड मदर इन लॉ के इशूज चल, झगड़े चलते, तुम मेरी बेटी को ये नहीं कर रहे, भला नहीं कर रहा हूँ मैं, सासू जी क्या करते कर लो, तुम देख लेता हूँ, वहाँ वो चलता, यहाँ इधर इशू माँ का ही चलता, तो समझने की जरूरत है। बहरहाल दोनों को लेके चलना ये एक अच्छे शौहर की बहरहाल अलामत है। आइए बात के हम इस टॉपिक के खात्मे की तरफ चलते हैं, अलामतों वाले शौहर के। शौहर और हुकूक क्या है, ये थोड़ा ड्यूटीज जो शौहर निभाए, राइट्स का राइट्स खत्म, ड्यूटी तो मैंने बहुत सारी, शौहर के भी याद रखे, बड़े अहम जो औरत को समझना पड़ेगा। ये अल्लाह ने फरमाया कहा, औरतों के ग्रोह, अगर तुम अपने ऊपर खाविन की अजमत को जान लो, अल्लाह ने कितने राइट्स पे रखे, अगर उसकी अजमत की बड़ाई पता चल जाए जान लो, यकीनन तुम में से हर औरत अपने खाविन की खदमों पर पड़े हुए गुबार अपने रुखसार से साफ करेगी, धूल को अपने गाल से, राइट्स डिवाइस, ठीक है, ड्यूटीज भी है, लेकिन इसके राइट्स भी शरीयत ने काम दिया है, मेहनत मशक्कत से वो हलाल माँ के लाता, और ये बीवी और बच्चों की मोहब्बत की वजह से ऐसे कई लोगों को मैंने देखा जो अपने घरों को चुके सालों साल बाहर गुजारे ताकि बच्चे एक अच्छी से गुजारे। ये भी मोहब्बत का एक बड़ा है, ये नहीं कि उसको कमाना था, उसको गाड़ी बना था, वो भी उसकी ख्वाहिश, लेकिन वो गया बच्चियों की पैदाइश के लिए करूं, बच्चे मेरे पढ़ ले, बीवी के लिए करूं, तो याद रखिए कहा कि तुम अगर उसके हक जान लो, तुम अपने गालों उसके पैर, ये तमसील है, साले बातों को समझाने की, प्रैक्टिकल मतलब उसको अमली तौर पर ना, लेकिन इंपॉर्टेंस समझाने, इतना उसका मुकाम है, उसका मर्तबा, उसका दर्जा है। इसी तरह शौहर के मर्तबे को बताते हुए, हुकूक बताते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जामे तिरमिज़ी की रिवायत है,
اگر میں حکم دیتا کہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ تعظیم کرے، اس کے سامنے جھکے، تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کے سامنے جھکے، لیکن اجازت مجھے نہیں ملی۔ تو یہ شوہر کا مقام ہے کہ اگر کسی کو حکم ہوتا سجدہ تعظیمی کا اس امت میں جو کہ نہیں ہے، تو وہ بیوی کو ہوتا کہ کرے مقام قربانی اور کوششیں کرتا، اور جو کچھ بیوی اور بچوں کے لیے کرتا، تو بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی اطاعت کرے، چونکہ اگر کسی کو حکم ہوتا تو شوہر کے لیے سجدے کا ہوتا، اطاعت کرے، فرمانبرداری کرے، بیجا اس کی نافرمانی سے ہر اعتبار سے یاد رکھیں بچنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح شوہر کا حق رائٹ بتاتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عبداللہ بن راوی فرماتے ہیں، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں جان ہے، عورت اس وقت تک اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ عورت اپنے رب کا حق تب تک ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے، مطلب اگر وہ شوہر کے رائٹس دیتی ہے تبھی وہ رب کے رائٹس، ٹھیک ہے، تو یہ بڑا کام ہے۔ اسی طرح حبان کی اور بحقی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، روایت کے الفاظ ہیں، شوہر کا ہر حق اس قدر ہے، شوہر کا بیوی پر حق اس قدر ہے کہ اگر شوہر کو زخم آ جائے اور بیوی اس کو چاٹ لے تب بھی اس کا حق ادا نہیں کر پائیں گے۔ یہ بھی مثال کے طور پہ بات کو سمجھانے کے لیے کرتے ہیں نا، کہ بھائی بولتے ہیں نا ماں کا کام یہ کہ اپنی چمڑی نکال کے بھی لگا دو، بڑی ایگزیجریشن ایگزامپلز پریکٹیکل نہیں، مطلب بہت ماں کا حق ہے بیٹا ان کے خلاف نہیں جانا، تمہاری دل نکال کے جوتے بنا دیں گے تو رائٹ ادا نہیں، یہ بتانے کے لیے ایگزامپل۔ تو کہا کہ اگر وہ زخم چاٹ لے، جانور وغیرہ اور تھوک میں اینٹی نیچر ہوتا ہے، کچھ زخم فائدہ بھی، تھوک چاٹ بھی لے، وہ کفایت کے رائٹس اللہ رب شریعت، یہ تھے اس کے ڈیوٹیز اور چند رائٹ شریعت۔ آئیے اب ہمارے دوسرے پارٹ کی طرف ہم چلتے ہیں کہ بیوی کیسے ایگزمپلری وائف، ایک پتو ہے، ایک اچھی پتو، وہ کیسے، اس کے بارے میں چند باتیں میں رکھوں گا حدیث سے انشاءاللہ عزیز۔ جو پہلی چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اچھی بیوی جو مثالی بیوی، کنواری، شیرین گفتار، ذات جنات پسند، شوہر کا دل لبھانے والی اور زیادہ اولاد پیدا کرنے والی۔ آپ فرمائیے اچھی، بہت ساری باتیں ایک ساتھ روایت سے سب رکھ دیا، 1 2 3 4 5 ایک ہی شارٹ، کتنی باتیں آئی۔ حدیث کے الفاظ ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث لمبی ہے بس کا اتنا جملہ میں رکھ رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ کنواری عورت نکاح کرو کیونکہ وہ شیرین گفتار ہو، کنواری عورت کی تو شیرین گفتار، بات کرنی بڑی لبھانے والی بات کر، تو یہاں بیوی کو ایک نصیحت دی جا رہی ہے کہ شوہر سے بات کیسی کرے، میٹھی بات آیا کرے، پچھلے کام سے آیا تھا، ٹھیک ہے، رسپیکٹفلی بات، آ گیا ہمارا باپ دیکھو ایسا کرنے والا ہے، شیرین گفتار، کیونکہ پہلا مسئلہ عموماً میاں بیوی کا جو کھٹکتا ہے نا، شوہر اپنے ایک مزاج سے گھر میں آیا اور بیوی کی گفتار، اس کی بات میں پرابلم ہوا اور جھگڑا ہوا، تو ایک بیوی کی صفت اچھی کیا ہے، شیرین گفتار، بات میٹھی کر، ٹھیک ہے، شوہر آپ سے سخت رویہ اپناتا ہے، کبھی وہ اس کو رائٹ نہیں، وہ کر رہا ہے ایسی غلط، بٹ اس کے کچھ نیچر کا پارٹ، لیکن عورتوں ایکسپیکٹڈ نہیں، کیونکہ نیچر میں وہ سختی ہے جو مردوں میں، ان کی مزاج نرم ہوتے ہیں، ان کے احساسات مختلف ہے، عورتوں کا مزاج، مردوں کا مزاج سخت ہوتا ہے، ان کے احساسات تھوڑے مختلف، سمجھ رہے بات تھوڑا ہو جاتا ہے، تو آپ میٹھی بات کر کے نلیفائی کر دیجیے، اس بات کو کاٹ دیجیے، انہوں نے کچھ سخت بات کیا، میٹھی بات کر اور معاملہ ختم ہوا۔ اب اس نے کچھ کہہ دیا اور تم نے کہہ دیا، اب دونوں بھی ویسے سادے چالے کریں گے تو پھر معاملہ کیسے آگے، وہ بھی کچھ مزاج اور آپ بھی کچھ بول دے رہے ہیں، ایک ابھی کیسا ہے معلوم، لوہا گرم ہے تو تھوڑی ٹھنڈا ہونے چھوڑ دو نا، اس ٹھنڈا ہونے کے بعد کیا کرنا ہے تم ہی کرتے ہو، کیا بولوں ہے ہی نہیں ہے، حالت یہ کہ بھائی تمہاری چلنے والی ہے، یہ بات تو اپنی جگہ طے ہے۔ لوگ بولتے ہیں مسلمان عورتیں مظلوم ہے اور مرد ٹیررسٹ ہے، میں بولتا ہوں مسلمان عورتیں ٹیررسٹ ہے اور مرد مظلوم ہے، دیکھو گھر میں کتنا ظلم ہوتا ہے، ہم لوگوں سے برداشت کرنا، شاپنگ کو لے کے چلے گئے تو پاکٹ پورا خالی ہو، اس سے بڑا اور کیا ٹیریفائنگ مرد کے لیے کہ پورے ختم ہوں گے ایک چکر، بیچارہ مظلوم ہی ہے، تھوڑی دیر بیچارہ شادی کے بعد شاید کر لیتا ہوں، لیکن بعد میں تو ماں بہن ان کا ہی چلتا، پھوپھی خالہ دادی نے بول دیا تو ختم، اب دادا بیچارے کھانس تو ان کا نہیں، دادی نے بول دیا میرا ویسا ہوں، نانی نے بول دیا فلاں جانا ہے، امی نے بول دیا بولے تو ابا کی تو باجی نے بول دیا تو اب پھر کیا ہے آگے، بچے کو رشتہ آ گیا، رکو تمہاری پھپھو سے پوچھتا ہوں، دیکھو ابھی بہن کی چل رہی، عورتوں کا مطلب معاملہ یہ ہے کہ مرد سنتے ہیں تو بہرحال اب وہ بھی ایسا تھوڑی دیر کے لیے کوئی ایک تو ارتھنگ بن جائے کہ کرنٹ لیک ہوگا تو لے جا کے ارتھ کر دو، تم بھی ایک فیز پہ فیز چڑھائیں گے تو سپارک ہوتا ہے پازیٹیو، بس وہ شروع ہو گیا، اور بیچارے پورے بچے ارتھ بنے ہوئے، اس کا بھی لے رہے، باپ کی اور ماں سے بھی پریشان ہے بیچارے، کتنی دیر چلیں گے ایسی ارتھنگ خراب ہو جاتی، تو ایک فیز ہے تو دوسرا فوراً نیوٹرل پلس ارتھ بھی بن جاؤ، اب پورا اندھو بولنا ادھر جو بھی ہے، آدھے گھنٹے بعد بتاتے کیا اتنی دیر کیا دیکھیے ہم بول رہا تھا، آپ کچھ بول رہے تھے آدھے گھنٹے پہلے جب آئے تھے اندر، ہاؤ میں سمجھ گیا کھانا نہیں لاتا، اب نہیں ملے، ارے نہیں بیگ تم بولے کیسے آج، ارے نہیں سوری ہو گئی تھی غلطی مینج، تب لیکن کیا کرنا ہے کہ مزاج، اس کے مزاج کا ایک پارٹ میں نے کہہ دیا تھوڑا ٹیڑھا، آپ ہاں یہ آدھے گھنٹے بعد بیگم آپ ایسا میری سیلری کا آپ دیکھو، ہاں میں تھی نہیں، میرے کو صحیح محسوس ہوا کہ آپ وہ ٹائم پہ سمجھے نا، ایک فیز ہے تو نیوٹرل بن معاملہ انشاءاللہ حل ہوتا ہے، شیرین بات۔ دوسرا آپ فرماتے ہیں زیادہ اولاد دینے والی ایک اچھی عورت کی بات بتاتے ہیں، مطلب اس کو اس چیز سے اختلاف نہیں ہوتا کہ اس بچے زیادہ نہ ہونا، بہت سی بار پہلے ٹرمز طے ہو جا رہے اتنی اولادیں، ٹھیک، اس کے بعد دوسرا فرما رہے تھوڑی سی چیز میں جلدی خوش ہو جانے والی، قناعت پسند، تھوڑی چیز میں جلدی، یہ ایک اچھی صفت ہے، یاد رکھیے۔ اب یہ نہیں کہ شوہر نے لا کر ڈال دیا پورے گٹھے، یہ پورے لا لیے، اس کا ایک دوپٹہ نہیں آیا، کیا فائدہ، مجھ بھی لاؤ، بولے نا پرابلم ہے تمہارا، ارے بیوی لے کے جو لایا وہ 10,000 کا وہ سامان دے گا، دوپٹے کو جھگڑا، تھوڑے میں خوش ہو جانا، ارے یہ تو آپ نے بہت لا لیا، اگر واپس پڑ رہا تو بلا نہیں تھوڑی تھی خالی لائیے ادھر، لیکن آپ اگر یہ بول دیں یار آپ نے بہت لا لیا، اتنا اچھا کمنٹ ملا کہ بہت زیادہ لا لیا تھوڑے میں، اور یہ اگر اپنا لے ہماری بہن تھوڑے میں تو دیکھیے اللہ تعالیٰ بھی برتیں گا اور اس کو ایسا صلاحیت مند بنا دے گا کہ بہت بھی لا کے دے وہ لیول تک پہنچے۔ کوئی ایسا آدمی ہے جو اس کے پاس ہو پھر بھی خرچ نہ کرنا چاہے اپنے، نہیں ہوتے ایسے، بہت ہی بیوی سے قریب اور کون، بہت کم ہوتے ہیں،
لیکن عموماً لوگ خرچ کرتے ہیں. اس کے بعد آپ ڈیمانڈ کریں اس کی پوزیشن کو نہ دیکھتے ہوئے تو اس کے ساتھ کیا گزرتی ہے آپ نہیں. مرد ہی سکتا ہے تو بیوی سے کہتے ہیں آپ نہ کریں کیا میں آپ سے امید کروں. وہ جانتا ہے کہ محنت آلریڈی کر چکا ہے ایکسٹرا کام کر چکا ہے, اتنے ایکسٹرا آورز کام کر چکا ہے, اس کا جس کا آپ ساتھ نہیں دیتا اتنے گھنٹوں میں, آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. آپ اس کی حالت تو سمجھیے اور ایکسپیکٹ کیجیے کہ میں سمجھ رہی ہوں آپ کی حالت یہ تو نہیں چاہیے, میں نے بول دی تھی غلطی سے, یہ رویہ ہو تو اگلی بار آپ کوشش کر کے لا کر دیں گے. لیکن آپ ڈیمانڈ کر رہے وہ نہیں لا سک رہا, وہ کر رہا, آپ میں ہر چیز برباد ہوگا. آپ کا یہ قناعت پسند کم میں ہو جانا, بس یہ رویہ اپنا لیں. اللہ نے اس بہت دیا کے حساب سے بھی اگر لا رہا نہیں لا رہا ہے اس کم. اور صحابہ کی زندگی آپ دیکھیں مکے کے اندر تھے, مالدار تھے, مکے سے نکلے تو مال دولت سب چھین لیا ان کا. تو جب وہ مدینے آئے تو غربت والی گزاری انہوں نے, تو کیا ان کی بیویوں نے یہ کہا اب تم سے شادی کر کے تو پھنس گئے, اب کیا جب زندگی تھی یہاں کے فساد تھی مدینے میں, تو مدینہ یثرب کہا جاتا ہے کہ وہاں بیماریاں تھی. صحابہ جب مدینہ پہنچے تو اشعار لکھے, ابو بکر صدیق نے کئی اشعار لکھے بیماری پر. مدینہ کی ہوا میں بخار, یثرب بولتے تھے, بخار ہوتا تھا, جو جاتا بیمار ہوا, بخار تیز بخار ہے, بیماری میں شفا ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی برکت کی دعا مدینے کو حرم کرتا اور اس میں دگنی برکت دے, اور اللہ کے رسول کی دعا قبول اور بیماری ختم. کسی نے کمپلین کی ہے کہ صحابیہ نے آپ نے قناعت جو لایا وہ ایکسپیکٹ آلریڈی بہت شکریہ جزاک اللہ خیر آپ کیا. حالانکہ شوہری بھی بات ہو رہا ہے کہ میں نے آپ نے جو امید کی تھی وہ نہیں لایا, انشاءاللہ اس کو بھی دلاسا ملے. آپ کوئی بیوی بولے نہیں یہ چیز آج کیا بھلائی پائی, شادی میں بولے تھے 11,000 مہن مانگیں گے 9 کر دی, اس دن بھی ابا نے برداشت کر لی میرے, اور کھانے میں بولے چھوٹے کا بنائیں گے اور بڑے کا بنا دی, اس دن بھی برداشت کر لی ہم نے. میرے رشتے دار آئے تھے اس دن میں جو ہے 2 کی جگہ 1 ہی ڈرائی کھلائے اور 1 گریوی کھلائے, خالی جب کہ طے ہوتا 2 کھلائیں گے تب بھی برداشت کر لی میں. اب پورا اتنا بڑا پورا آڈٹ نکال کے بیٹھے گئے, پورا حساب کتاب چالو, یہ اس دن ایسا ہوا, اس دن ایسا, بہن کے ساتھ ایسا, میرے بھائی کے ساتھ ایسا. ماشاءاللہ آپ نے جو بھی کیا آلریڈی بہت ماشاءاللہ بہت اچھے, آپ نے اچھا کیا. آپ کو ایسا لگ رہا کوئی بات اصلاح کی تو اگلی بار بولیے یہ دکان سے آپ مت لایا کیجیے, اگلی بار کیا کرنا آپ بولے لا لیے کیا ایک کو لائے یہاں سے, بول رہا ہے میں نے اس سے آپ کو لایا اور آپ آتے کا پورا خلاص فنش کر کے ایک ہی شاٹ میں آپ لا لے, برداشت سے آپ آئندہ کبھی لائیں یہاں سے. اور کیوں وہاں ڈینائل نہیں آتی, آپ انکار کر دے واپس. احساسات سمجھیے, چیزوں کی لمٹ, کوانٹٹی, اس کی تعداد, اس کی قیمت مت دیکھیے. تحفہ, یہ چیزیں جو بھی وہ کچھ لاتا ہے کھانے کے, پہننے کے لیے, گھر کے لیے, خوش رقینات اختیار کیجیے. صحابہ کو بہت بڑا قناعت, اتنی قناعت صحابہ, اتنا اپنے آپ میں جو کچھ ان کے پاس ہے مطمئن ہوتے ہیں. کہ کچھ صحابہ کو حال یہ تھا ہاتھ کی لکڑی گر جاتی, عمر زیادہ ہو گئی. آپ کو بہت ساری روایتیں صحابہ کے واقع, ریاض الصالحین خاص طور سے پورا باب کی نمبی کا ضرور پڑھی اس کو. تو کچھ صحابہ اتنے بوڑھے ہو گئے کہ ہاتھ کاپتے تھے, کاپنے سے لکڑی چھوٹ جاتی تھی, لیکن کو اٹھا کے دے نہیں کرتے, جو خود کر چھپ کر خود لیتے ہیں, مطلب دوسروں سے ایکسپیکٹیشن, لکڑی اٹھا کے دینے کی, گر جاتی تو اٹھانے نہیں دیتے, ہم ہی اٹھائیں گے, خود جھک کر, حالانکہ کاپتے, اندازہ لگا بہت زیادہ. تو جب صحابہ ایسے ہدیات دی ایسی بہت زیادہ, اتنی زیادہ کہ انشاءاللہ مثالیں پھر کبھی موقع ملا تو قناعت. تو ایک ہی روایت میں قناعت پس جو لائے سیٹسفائیڈ رہیے, خوش رہیے, جزاک اللہ کہیے, اللہ کو ادا کیجیے, آپ کے شوہر کے شکریہ ادا کیجیے, اور بچوں کو کہیے کہ آپ کے والد نے دیکھو اتنی محنت کی. اب ایک والد نے کچھ لایا اور ماں نے پہلے بولی کیا کھلائے, بچوں پہ کیا سمجھ, وہ بھی ناشکرے بڑے. ان والد کہنے دیکھو آپ کے ابا نے لائے, بہت لائے, حالانکہ ہم سے وہ یہ لائیں, لیکن شاید ان بیٹا سیلری کمی, کوئی مسئلہ نہیں, انشاءاللہ آپ گزار کریں گے, یا تم لوگ بڑے ہو اللہ تب کر لیں گے, ضروری تھوڑی آ جاؤ. تو بچوں کو بھی ہمت آتی جو والد نے کیا بہت اچھا کیا, یہ بھی جب بچے بڑے ہوئے تو ایسی والد بچہ ایسی باپ بھی بن کہ ہماری ماں ایسی, جو ماں کو یہ کرتے دیکھی تو وہ بھی ویسی بات سکی, معمولی نہیں, گھر برباد ہو جائے. چھوٹی چھوٹی باتیں بہت اہم رول ادا کرتی ہیں. آئیے بازار کی روایت ہے, شوہر کی اطاعت گزار ہوتی ہوئی بازار کی روایت میں عائشہ فرماتے کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا گیا تھا کہ عورت پر تمام لوگوں میں کس کا حق سب سے بڑھ کر ہے, جو لوگ دنیا میں ہیں ان میں کس کا حق سب سے بڑھ کر ہے. تو آپ نے جواب دیا تھا اس کے خاوند کا, اس کے ہسبینڈ کا, اس کے پتی کا, اس کے شوہر کا, عورت پہ سب سے زیادہ. ٹھیک ہے, پتہ چلا کہ عورت کو سب سے زیادہ اطاعت کس کی کرنا ہے, شوہر. عورت کو سب سے زیادہ اطاعت کی کرنا ہے شوہر کی, لیکن معروف, ہر مسئلہ ایسی ہے, والدین کی اطاعت کرنا ہے معروف, شوہر کی اطاعت کرنا ہے معروف میں, حاکم کی اطاعت کرنا ہے معروف میں, اچھائی میں, برائی میں. یہ بات ہے اصول شرعی, تو اس کی اطاعت کرنا ہے. اندر کیوں بتا رہا ہوں, ہمارے پاس اب اصول کیسا یہ بھی سیکھ لیجیے آپ. شادی سے پہلے اور شادی کی بات کرو, شادی سے پہلے معاملہ کیسا ہے, اللہ اس کے رسول, اللہ اور اس کے رسول کا حق, اس کے بعد ماں کا حق, اس کے بعد باپ کا حق, ایک لڑکی کی یہ رائٹ. سیکنڈ, شادی شدہ ہے تو حق بدل جاتے ہیں, پہلا اللہ کا, پھر اس کے رسول کا, اس کے بعد اس کے شوہر کا, اس کی ماں کا, اور پھر اس کے والد کا درجہ. یہ بات اگر سمجھ لے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. ہر بار مسئلہ یہی شروع ہوتا ہے, میرے امی نے یہ بولے, آپ اب کسی اور کے نکاح میں, اب آپ کا شوہر آپ کا ذمہ دار ہے, امی بھی ہے, لیکن اب بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بازار کی روایت ہے پہلا حق اس کے شوہر کا ہے, ماں کو. اچھا آپ کہیں گے ماں کا درجہ پھر رہتا اللہ اور اس کے بعد وہ کا, حدیث کا آگے کا جو بات واضح, اس کے خاوند کا. ماں عائشہ نے عرض کیا مرد پر کس کا حق سے زیادہ ہے لوگوں میں, تو اس کی ماں کا. اللہ اور اس کے بعد ماں, مرد کے لیے ماں, عورت کے لیے غیر شادی شدہ تو ماں ہی ہے, اس کے لیے بھی پھر اس کا والد, لیکن شادی شدہ ہے تو پہلے شوہر پھر ماں اور باپ. اسی میں نے یہ کہا تھا, لیکن جب یہ مسئلہ نہیں سمجھ پاتی ہماری بہنیں, اور شادی کے بعد بھی ابا کے پہ ایسا ہوتا تھا اینڈ ایشو چل بولتا, پھر آئے کہ ہم تو ایسے ہی کرتے پہلے سے, خلاص تھے, دیکھے نہیں تھے, تو ہماری حالت تو یہ تھی, تمہارے سامنے کچھ تھا, تو آپ نے کیوں کوٹ کیا اپنے والد کا, جبکہ اب آپ کے لیے اتھارٹی آپ کا شوہر ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے والد کی بات نہیں مانیں گی, معروف میں اس کی مانیں گے کہ پہلے شوہر. اگر شوہر بولتا ہے یہاں مت جاؤ اور والد بولتا ہے وہاں جاؤ, تو والد کی نہیں سنی جائیں گی, کیونکہ شوہر اب ہمارے
पास हमारी बहन इतना ही समझ लेना तो अक्सर झगड़े अल्लाह रहम के पास झगड़ों के लिए तैयार। बच्चों को आप पढ़ाते, बच्चियों को पढ़ाते, पढ़ाइए, मैं बिल्कुल अगेंस्ट। पढ़ाई का मकसद क्या है मुझे बताइए? एक एजुकेटेड पर्सन हो, एक इंसान तालीम याफ्ता हो, लेकिन हमारे पास बच्चों क्यों पढ़ाते आप? आपके पढ़ाने का मकसद और उसकी नीयत ही गलत है। क्यों पढ़ाते? बेटा अगर तेगो को होशियार चतुर चालाक मिला ना कभी तो तू भी पढ़ी लिखी अपने कदमों पे खड़ी हो सी है, तो आपकी इंटेंशन ही गलत। आप झगड़ा होगा के अंदर, बीवी क्या बोलती? आई एम एजुकेटेड, छोड़ दे, कभी भी जा सकती, ये डिग्री अभी जॉब मिल जाती। ये कह को ना था उसे छोड़ने का बोला? आपने आपके एजुकेशन छोड़ने का रीजन बना। प्रॉब्लम आप एजुकेशन देने में इंटेंशन। एजुकेट कीजिए अपने बच्चियों को ताकि वो एक ऐसे नागरिक बने, एक ऐसे इंडिविजुअल बने सोसाइटी के जो वेल एजुकेटेड हो, ताकि मुल्क तरक्की में और समाज। ये नहीं कि बेटा तुम्हारे साथ फला होगा तो काम आएगा। ये बोली समझ रहा बात? गाड़ी पंक्चर हो, तैयारी हमारी होती, स्टेपनी लगी हुई होती, लेकिन रोज स्टेपनी बोलती मैं तैयार हूँ, अभी भी तू हट जा टायर, मैं लग जाती है कि नहीं बोलती हूँ। वो पड़ी रहती है अंदर, कभी कभार तो बगैर इस्तेमाल होने की वजह से खराब हो जाता है। टायर इस्तेमाल ना हो, हवा ना हो, वो कोट नहीं करती हर बार, निकल जाओ तो मेन टायर आती, मैं तुम्हारे बदले चला लूंगी गाड़ी को जितना चलाना है, नहीं करती। इसके लिए मत रखिए, ये भी एजुकेशन इसमें भी काम आएगा, छोड़ दी भी तो काम आएगा। अल्लाह ना करे वालिद का इंतकाल हो जाए, भाई वगैरह नहीं संभालना नहीं तो तब भी करता है, लेकिन आप इंटेंशन ये सब कोट बनना, ये सब झगड़े का घर। तो इताअत, अभी शोहर का मामला, ठीक है, इस चीज को समझ ले, आधे झगड़े इंशाल्लाह खत्म जाते हैं। मुस्नद अहमद की रिवायत है, एक औरत नबी की खिदमत में हाजिर, को मसला पूछा, फारिग हुई, फारिग हो जाने लगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा क्या तू शादीशुदा है? ने कहा हाँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा फिर अपने क्या मामला है, इताअत करती है क्या, फरमाबरदारी करती है क्या? उस औरत ने कहा मैं तब तक करती, मैं आजिज नहीं आ जाती, आजिज आगे फिर इताअत नहीं करती। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ फिर तो क्या मतलब खिदमत करती है, क्योंकि ये बात जान ले वही तेरे लिए जन्नत है और वही तेरे लिए जहन्नम है, करना चाहिए। ये बात अपने बच्चियों को हम तालीम, ये बात सिर्फ अपनी बीवी को तालीम मत दो, आप जाके अपने बच्चियों को एजुकेट करें ताकि जब ये भी निकाह में जाए कि मर्द के वो राइट्स दे कि निकाह में हो जाए। आइए आगे बढ़ते। एक मिसाली बीवी की जो सिफत है, शोहर की अदम मौजूदगी में उसकी गैर मौजूदगी माल की इज्जत की हिफाजत करने वाली औरत बेहतरीन बीवी। शोहर की गैर मौजूदगी के माल की हिफाजत, बहुत सारी बीवियां अहमक हरकत करती है और अपने शोहर की रकम को बेजल लोगों में लगाती है, रिश्तेदारों में लगाती है। लगा सकती है आप अगर वो जनरली मुस्तहिक है तो शोहर की इजाजत। और शोहर अगर अपने बीवी को इजाजत देता है तो बीवी को भी सदका करने का पूरा मिलेगा और शोहर को भी, क्योंकि उसकी कमाई से वो दे, तो उसकी गैर मौजूद की माल की हिफाजत करे, उसकी इज्जत की। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन बीवी वो है जिसकी तरफ तू देखे तो तुझे खुश कर दे और जब तू किसी बात का हुक्म दे तो बजा लाए, और तेरी अदम मौजूद तेरे माल और अपनी जात की हिफाजत, माल की और इज्जत की। इस हदीस में देखिए कितने अल्फाज आ गए। पहला, जब उसकी तरफ देखे तो वो तुझे खुश कर दे, ये एक टीवी की अलामत है कि इसका तरफ देखे तो वो उसे खुश कर दे। अब शौहर घर में गया, बीवी से मुलाकात किया, बुरी सूरत बना के देखी उसने कि ये बेचारा वहीं पंक्चर हो गया, इसकी तो हवा ही निकल गया। अब क्या होता है, क्या हदीस के अल्फाज देख, बेहतरीन भी वो है जिसकी तरफ देखे तो तुझे खुश कर। समझ रहा बात? बहुत सारी औरतें होती है हमारे शौहर हमसे खुश, यू हैव टू चेंज, आपको अपने अंदर तब्दीली लाना, ठीक है। लेकिन अभी मसला ऐसा है कि वो कभी कभार जब खुश हुए तो इन्हें पॉकेट को पकड़ना शुरू कर दे वाले। क्या होता है कि बहुत ही दिख रहे, 2-3 दिन खुश, खाना वाना, उसके बाद क्या है वो जरा नया आ गया, अगर ये कुछ ये बादल आए तो बरसने वाले पहले से, मतलब खुशी इतना कम हो रहे हैं कि जब हो रहे हैं तो इसको एकदम हार्ट बढ़ जा रही, पाल्पिटेट, क्या मतलब क्या हुआ, बहुत ब्लड प्रेशर आउट हो रहा, तुम कुछ बहुत दिख रहे, कुछ प्रॉब्लम मुझे आती है। देखिए तो कुछ सहाबा ऐसी जिंदगी गुजार, आप उनकी जिंदगी का मुताल्लक एक जो है गजवा, उस गजवे का नाम था, अरबी नाम भूल गया मैं, उर्दू में उसका तर्जुमा है चीथड़ों वाला गजवा। मतलब सहाबा की गुर्बत का ये आलम, कंप्लीट कपड़े नहीं थे, टुकड़ों को बना के पहने थे, कपड़ों के टुकड़ों से बनाए थे, फुल कपड़े नहीं थे, तो कहीं पैचेस के कपड़े पूरे, वो इतनी गुर्बत हुआ वो मरेका की, वो उसको कहा ही गया, अरबी के अंदर नाम भूल गया मैं, चीथड़ों वाला, टुकड़े थे उनके पास पहनने के लिए, साबित कपड़े नहीं, कपड़ा पहना था सब टुकड़े वाला था, पैचेस वाला साबित। लेकिन क्या से कंप्लेन वाला एक ही बात, अनबन हो रही है, यहाँ भी मर्द औरत मिजाज है, होगा कभी भी नाश कलेमा, मैं तो वहाँ खुश थी मक्का में, कभी नहीं एक साबित, ये उनके मिजाज। वो जानती थी कि ये अगर वो कर बैठी तो बहुत बड़ा हक शौहर का मार दे, और जहन्नुम में जाने के सबब, बड़ा सबब है तेरे पे एहसान करने वाला एहसान को उतार दे। मैं आपसे फरमाया, मैंने जहन्नुम को ज्यादा देखा, पूछा क्यों, तो तुम पे जो एहसान कर उसके एहसान को उतार देती, और लानतान फौरन लाना तो बच्चों पर, लाना तो उन पर, लाना तो उनके घर पर, गाड़ी पर, और एक काम क्या, नाशुक्र, मतलब तू उस पर, आप सबने उसमें मिसाल भी दी कि तू उस पर जिंदगी पर एहसान करे और एक बार कोई ना काम करे तो क्या कह रही थी, आज तक मैंने तुझसे कोई खैर पाया है, जिसने सब कुछ लगा दिया आपके लिए, आप ऐसा बहुत खतरनाक बात। तो देखे तो खुश। दूसरा, किसी बात को बजा लाए, फरमाबरदारी, तेरी गैर मौजूद तेरे माल। और आइए आगे बढ़ते हैं। एक मिसाली बीवी जो सिफतें हैं हमारे, ठीक है, औलाद से मोहब्बत करने वाली और शौहर के तमाम मामलात में अमीन, अमानतदार, ये एक मिसाली की सिफत है, मुस्लिम रिवायत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऊंटों पर सवार होने वाली औरतों में बेहतरीन औरतें कुरैश की है, जो बच्चों पर निहायत की शफ़क़त करने वाली होती है और मेहरबानी करने वाली हैं, और अपने शौहरों के माल और दौलत हिफाजत में सबसे ज्यादा अमीन, बिल्कुल बेजा वेस्ट ने शौहर का माल और अमानत साथ रख जब शौहर। तो इन कुरैश की और सिफत, एक तो बच्चों बड़ी, कई मरतबा बच्चों के ताल्लुक से ही बीवी का रवैया गलत, पूरे मसाइल खड़े होते घर, सख्त रवैया, डांट फटकार, ताने देना, लानतान करना और मारना पीटना, हमको ये
इसको समझना चाहिए। और कभी कभार जो है फितने का बायस होता है ये। दूसरा जो है वो अपने शौहर की गैर मौजूदगी में बहुत अमानतदार हो। इसी तरह एक औरत जो है अगर शौहर की इताअत गुजार हो, जो कि एक मिसाली औरत की बात है, अल्लाह की इताअत गुजार होती है और अपने शौहर की भी, उसका फायदा क्या हदीस के अंदर सुन लीजिए आप। फायदा इसके अंदर यूं इस तरह से बताया गया मुख्य रिवायत है, जब औरत अपनी पांचों नमाजें अदा करे, ये बात को गौर से, जब औरत अपनी पांचों नमाजें अदा करे, 5 टाइम सलाह, पांचों नमाजें अदा करे, महीने के रोजे रखे, मतलब रमजान के रोजे रखे, और अपने खाविन की इताअत करे, अपने शौहर की हस्बैंड की इताअत करे, फरमाबरदारी करे, और जाहिर सी बात है मारूफ अच्छाई में है, इताअत गुजारी करे। और चौथा काम अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, 5 वक्त की नमाज पढ़े। सेकंड क्या बता रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक महीने के मतलब रमजान के रोजे रखे, शौहर की इताअत करे। उसके बाद चौथी चीज आप बता रहे अपनी गाह की हिफाजत करे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैन कर हदीस के अल्फाज सुनी, गौर से सुना मैंने, उसको रोजे क़यामत कहा जाएगा, जन्नत के जिस दरवाजे दाखिल होना है दाखिल। जन्नत के 8 दरवाजे, 4 ही काम। पहला काम जो हदीस के अंदर बताया जा रहा है वो 5 नमाज अल्लाह। दूसरा काम अल्लाह का, तीसरा काम शौहर की इताअत, बंदों में से पहला उसका शौहर की इताअत करे, और शर्मिंदा, ठीक है, उसको रोजे क़यामत कहा जाएगा, जन्नत के जिस दरवाजे दाखिल होना है दाखिल। मैं नहीं समझता हूँ इससे आसान कोई तरीका है, इसीलिए बार बार कहता हूँ औरत के लिए जन्नत जाना मर्द, लेकिन उसके बावजूद हदी कसरत जहाँ समझिए कितना हमारी माशाल्लाह अक्सर में देखा माँ बहनों को तहज्जुद गुजार, मर्दों के मुकाबले औरतें नमाज से ज्यादा पढ़ती। सेकंड, रोजे रखे महीने बहुत आसान, तो मशक्क़त को पैसे की रख। थर्ड, शौहर की इताअत यहाँ कम। चौथा, शर्मगाह की इबादत। ये सब जिना होकर अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्मत में ये सब राय जीते। अब एक ही चीज बाकी, थर्ड वाला शौहर की इताअत। इतना अफसोस मर्दों के लिए इस रिवायत के 4 काम करे, समझ रहे हैं, बड़ी अहम बात समझने की। इसी तरह एक अच्छी बीवी की सिफत और अलामत ये शौहर की राजदार। आइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, क्या मैं तुम्हें तुम्हारी जन्नती औरतों के ताल्लुक से कुछ ना बताऊं, मतलब जन्नती औरतों के ताल्लुक से क्या कुछ बातें तुमको बताऊं। तो हमने कहा कि अर्ज किया कि हाँ अल्लाह के रसूल, क्यों नहीं, आप बताइए कि वो जन्नती औरतों की क्या सिफत होती है। तो आप सब फरमाया, सुनी हदीस, लंबी हदीस में, तो आपने फरमाया ज्यादा औलादे पैदा करने वाली, बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाली, जब शौहर नाराज हो जाए, जब शौहर नाराज हो जाए या इसके साथ बदसी करे या इसका शौहर इससे खफा हो जाए तो यूं कहती है, मेरा ये हाथ आपके हाथ में है, मैं तब तक बिल्कुल ना सी जब तक आप राजी। आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा तरीका बता रहे हैं वो क्या कर शौहर के साथ कैसे उसको मनाती है। ये नहीं बोलती जाओ तुम नाराज, मैं भी नाराज, कल अब्बा के पास छोड़ दो, सुबह में बोले हाँ बस तुम धक्के धक्के, यही मसला। जब अल्लाह उसके आपके शौहर को आपके लिए जिम्मेदार बना दिया, फिर आपके लिए अभी भी वो आइलैंड कहकू बाकी कि वहां जाना है, बाप वाला आइलैंड। आप जब इधर आ गई ये आइलैंड पर, ये जजीरे पे आ गए, तो कुछ बातें चल रही पूरी जिंदगी। कह के होना तो ये चाहे शौहर बोल रहा कि मैं अब जो है ना बहुत काम है तेरे को छोड़ देता, मैं कहाँ जाती तुम्हारे को छोड़ के, क्या करना है, बोलता तो इसको संभालना, इसलिए छोड़ने का चांस। अब बीवी भी क्या बोलती, छोड़ दो ना, बोलता आसान मौका, बहुत आसान, मतलब इसके दिल में अगर कोई शर है तो इसको चांस दे दिया, मौका छोड़ दो, चल जाती है अब्बा या कुछ अब्बा पर चल जाती है। ये बोलना याद रखिए बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, ये चीज वो नहीं करना। आप ये बोलो अल्लाह मेरा सहारा है और तुम दुनिया में मेरे अल्लाह की तरफ से अपॉइंटेड से आ रहा हो, मैं तो कहीं नहीं जाता, तुमको ही संभालना है। कैसी मोहब्बत रहेंगी शौहरों में, फिर और कुछ भी कर लो, जाने का तो नाम, समझ रहा हूँ। अभी धक्के रखे चल जाते, नाराज हो तुम, नाराज मैं जाती है अब्बा, छोड़ दो मेरे को अब्बा की, शादियों के 50 साल हो गए, अभी भी छुट्टियां मेरे को अब्बा कोई खुशी हो गई, अब्बा की मतलब अम्मी को फोन कर, यहाँ भी खुशी मना लिया अपने साथ, अम्मी को भी फोन कर, लेकिन इसको महसूस तो नहीं था ये घर तेरा है। पहली खुशी का फोन वहां जाएगा, मेरे लिए क्या बात, एहसास दिला दे कि अब मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ की, आप मुझे यहाँ से बेदखल नहीं, घर सिंपल। अब शौहर बोलेंगे भाई जो कुछ है इस्लाही का चांस नहीं है अपने लिए, तो बहरहाल शौहर की राजदार हो, इसलिए बहरहाल हमारा रह गया था, ठीक है। तो यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि वो किस तरह से अपने शौहर को जो है मनाते, याद रखें। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 3 शख्स ऐसे जिनकी नमाज कबूल नहीं होती है, ठीक है। एक मिसाली शौहर की इताअत गुजार होती है, अगर ना हो तो उसका नुकसान भी है। 3 अशखास ऐसी नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। एक वो गुलाम जो मालिक को अगर भाग जाए जब तक वापस ना आ जाए, अगर मुआहिदा है तो पूरा दे, पैसा दे के छुड़ा ले, या फिर नहीं जा सकता मुआहिदा है वरना उसकी नमाज। दूसरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खास का शौहर नाराज है, शरई बुनियादों पे, बेबुनियाद पे नहीं, उसकी नमाज भी अल्लाह ताला कबूल नहीं करता, याद रखिए, हत्ता कि वो उसको राजी कर ले। और तीसरा फरमाया वो शख्स जो नशा करता है, जब तक नशे की हालत में, 3 लोगों की नमाज मामूली इताअत गुजार समझदार ये होना जरूरी। इसकी इजाजत के बगैर जो है कोई काम नहीं करती और खर्च, ये एक अच्छी बात है कि अपने शौहर से इजाजत लेती है और खर्च करती है, याद रखिए। पहले हमने रिवायत ली कि वो माल की हिफाजत करने वाली, मतलब बगैर खर्च नहीं करती है, उसके अंदर आ गया। इसी तरह जो है माल है तो शौहर पर खर्च करती, मिसाली भी ये भी सिफत है कि अल्लाह ने अगर उसको माल दिया है तो अपने शौहर पर खर्च, अल्लाह ने उसको दिया है। अब ये एक अलग बात है जो समाज में रहती है, थोड़ा इस बात थोड़ा समझाता। हमारे समाज में सोचना भी मुहाल है कि बीवी का अलग माल भी होता है या एक औरत का अलग भी होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाने में ऐसा नहीं था, सबकी अपनी अपनी मिल्कियतें थी। ये एक बड़ी अजीब बात है कि औरतों के हुक्म में हमने यह मुकम्मल मार दिया, कंप्लीटली उनको सबसे डिनाई कर दिया। विरासत का हिस्सा जब तकसीम होता, बेटी को मिलता तो शौहर के नाम पे कर दिया, उसका हक है, वो उसकी मालिक है। आपने कोई जेवर लाके वो उसकी अगर उस दे दिया तो वो उसकी मालिक है। जमीन जायदाद उसके नाम पे कर दी, वो उसकी मालिक है और मालिक इख्तियार है उसकी मिल्कियत, जो चाहे हमारे पास वो उसका नाम होता है, टैक्स बचाने के लिए इनके नाम पे कर दो, है तुम्हारा कुछ नजर नहीं आता। जब वो हदीस है ये क्या होता, ये कौन सी सहाबी अमल अपने शौहर की मदद करी पैसे से, पैसा भी होता है क्या, समझ रहा। तो हमारे पास बीवी की मिल्कियत है, आप समझे बीवी
की मिल्कियत है, उसके अब्बा ने 2 लाख रुपए दे दिए, अब शौहर का रोज क्या करे, कहाँ खर्च करे? देखो मैं तुमको एक मशवरा देता, कहको देते था घर मुझे, बीवी को जो भी देंगे खर्च करने का मशवरा खुद देंगे क्या करना, और बीवी ने उनको 1 रुपया का नहीं बोलना कि क्या करना खर्च। देखो बेगम मैंने मेहर दिया ना, मेहर तो तुम क्या करो, ये मेहर ये तुमको दे दो। अरे क्यों? लेकिन जब वो उसकी मालिक है तो आप कौन होते हैं बोलने वाले? अगर वो आपको बोले आप भी जितने को मेहर दिया अपनी कीमत आप क्या करो, तुमको दे दो, देते। मैंने अक्सर देखा लोगों को, देखो मेरी शादी को क्या करा, मेहर दिया 20,000 रुपए और मस्जिद में देने लगा दी। क्यों? लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा, वो उसकी मालिक है और ओनर को राइट है कि वो अपनी कितना जो चाहे करे, आप कौन होते गाइड? मतलब शौहर मुकम्मल तौर से काबिज हो गया कि बीवी की मिल्कियत नाम की, औरत की मिल्कियत नाम की कोई चीज समाज में बची नहीं। वो तब होती अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु की बीवी जो है मालदार औरत, अब्दुल्ला इब्न गरीब आदमी, बीवी मालदार शौहर गरीब, ताजीब कैसे ना, आप तो देखने को भी नहीं। शादी होगी वो बीवी सब लाओ मेरा, तुम्हारे अब्बा से भी लाओ, लाते रहो, तुम एटीएम मशीन है, कार्ड डालो, कोड डालो, छोड़ दूंगा, बाप भेजता था, छोड़ दूंगा, बाप भेजता था। मतलब इसका लड़की का बाप सुसर, मतलब बीवी बीवी नहीं एटीएम मशीन बन गई, कार्ड डाल कोड डालो, छोड़ दूंगा, पैसा आ जाता, ख्याल लगा तो उसका तो ले ही लेता और मंगा। लेकिन वैसे सब शादी हुई, बाप से मिल्कियत मिली, वो मालदार। तो ये एक बार बताने लगी, मैं बड़ा गरीब आदमी, माने कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो पाता, तुम कुछ मदद कर दो ना मेरी। उसने कहा मैं ऐसे कैसे मदद करूँ तुम्हारी, पहले रसूलुल्लाह पूछूंगी क्या ऐसा होता है क्या, तो ठीक है जाओ। अब ये कहती मैं चली गई, अब वहां गई तो मेरे को शर्म आ रही, कैसे पूछूं, सहाबा भी थे, अब्दुल्ला बदनाम हो जाएंगे ना, शौहर बदनाम, खामोश बैठी। एक दूसरी औरत आई और उसने कहा अल्लाह के रसूल मेरा शौहर जो गरीब है, मैं मालदार हूँ, क्या दे सकती हूँ? उन्होंने कहा मेरा मसला आ गया। औरत ने मेरा मसला, ये सुनने लगी कि आपसे क्या जवाब। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिवायत पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी में जो कहा उतना मैं आपसे कह रहा हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया और कहा इनके लिए दोहरा अजर और सवाब है, खराबतदारी का और सदका देने का। आपने दो तुमको डबल रिवॉर्ड मिलेगा, एक नजदीकी रिश्तेदार को देने का और बिशौरे, और सेकंड सदका करना। और एक दूसरी रिवायत के अल्फाज इस तरह से, उसकी रिवायत ये कि तेरा शौहर और तेरे बच्चे सबसे ज्यादा हकदार है कि सदका करे, लिहाजा भी अपने शौहर को, लेकिन देना उसका राइट, सुन लीजिए, वो नफिल होगा, क्योंकि असल बीवियों को पालना किसका हक है? शौहर का। लेकिन अगर भी मालदार है तो वो खर्च कर दिए। दूसरा मसला इससे पता चला बीवी से शौहर पैसा ले सकता अगर वो देना चाहती है तो ये भी हमारे समाज बहुत बुरा मानते हैं, अरे उसको पैसा लिया उसने, मत खाओ, घर पे हराम होगा खाना। लेकिन हराम खा नहीं, औरत का चलता क्या बिलाते, मतलब औरत के पास कुछ होता ही नहीं हमारे समाज में, दे रही नहीं तो हाँ समझ में नहीं आ रहा होता मतलब हराम है। अरे तो उनकी हलिया ने अब शौहर को ही सब दिया, मालदार है करे, हो सकता है ना अब्बा से बहुत मिला, हस्बैंड उतना मालदार नहीं, हेल्प को मत ले सकते, लेकिन हस्बैंड का ये राइट नहीं, शौहर का अधिकार की बात नहीं बोलती ना बस राइट, ये उसकी मिल्कियत है, शी इज कम्प्लीटली ओनर और मुकम्मिल उसकी मालिक है, चाहे तो दिन ना भी दे तो आपसे अल्लाह के पास, ठीक है। बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नेक सिफत ये शौहर की शुक्रगुजार, सही बुखारी रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ औरतों की जमात सदका खैरात करो, बिलाशुबा मैंने तुम्हें अहले दोज़ख में, जहन्नम में सबसे ज्यादा देखा है। औरतों ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस वजह से आपको जहन्नम में सबसे ज्यादा देखा है? जवाबन आप फरमाया तुम लानत बकसरत करती हो और खाविन की नाशुक्री करते हो, यह खाविन का नाम है। और एक रिवायत में जो अपने घर में तुम नाशुक्री होती हो, उसमें आम है बाप भाई शौहर की, लेकिन इस हदीस में शौहर का लफ्ज खाविन, शौहर की बीवी, शौहर गुजार रहे हो बीवी है। इसी तरह शौहर के राज को फाश न करे, याद सही मुस्लिम की रिवायत है, बिलाशुबा क़यामत के रोज अल्लाह ताला के यहाँ तमाम लोग से बदतरीन मर्द और औरत वो होने वाले हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं और फिर अपने राज जाकर अपने दूसरे लोगों को बताते हैं, चाहे दोस्त हो, चाहे सहेलियों, चाहे अम्मी हो, चाहे अब्बा हो, जो आपस के राज है तो शेयर करेंगे, पहले से एग्रीमेंट हो जाए कि ये राज से शेयर करने वाले हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते। बहुत सारे कितने मस्त घरों में तब जब मियां शौहर की बात को खामोशी से लीक कर देती है, उनकी अम्मी ने किसको बोलूंगा तो हमारा दामाद ऐसा, उन्होंने किसको दिया हमारा दामाद ऐसा, यहाँ उनका दामाद ऐसा, दामाद को बोल रहे अरे क्यों तू ऐसा है, तुमको कैसा पता चला? हमको क्या नहीं पता, ये तो थोड़ा ही पता चला, अभी तो बहुत कुछ आ गया, अभी डर जाता क्या क्या पाल, हालांकि वो भी झूठा है, पूरा नहीं पता, उतना ही पता है। अब इन्हें तैशना तूने बोले याद रख हमेशा क्या बात मेरी, निकाह के अंदर दो चीजें बड़े हैं, एक भी हो जाए ना तो खत्म हो जाता है, एक मोहब्बत, दूसरा एतमाद, खलास ये दो में से एक हो गया शादी खत्म हो जाती है। एक तो मोहब्बत खत्म हो शादी बाकी, तो एक एतमाद, शौहर को एतमाद नहीं रहा तो वही के साथ तो रहता है, कभी उसका एतमाद कभी मत पेट फूट जाने दिए, अंदर सड़ जाने दीजिए, आता अंदर की बात तो बाहर नहीं आने वाली। होता ना कुछ बोल दिया मैं क्या करूँ, कैसा कॉल करूँ, अम्मी बाहर आ चुका है तो कोई बात नहीं, लगाओ इंटरनेशनल कॉल, अम्मी वैसा हो कैसा कैसा बोली ऐसा करे, बहुत तकलीफ थी, वो अब निकला तो गुफराना का पढ़ के, गुफराना का वैसे बैतुल खला से दुआ पढ़, अब ये हालत नहीं, शौहर ने बोल दिया, अब इन्होंने मामला खत्म, अब ये मरने के साथ ही चल जाएगा या क़यामत दिन चलने वाला क्या राज, सिवाय शरई ज़रूरत की बात अलग मसला है, ये खास खलीफा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके साथ जो है मशवरे में शामिल होती है और अच्छा मशवरा देते, मिसाली बीवी, इसी तरह मिसाली बीवी ये कि वो अल्लाह के राह में खर्च करने बढ़ावा देते, बोलती है यस आप आगे बढ़ो, आप खर्च करो। आइए इसकी एक बहुत प्यारी मिसाल मैं आपको देता हूँ। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह के राह में कौन सदका करेगा, उसको अल्लाह ताला रोज़े क़यामत जन्नत के अंदर जो है ऐसे झाड़ देंगे जिसमें खजूर के गोश्त से लदा हुआ, बहुत अच्छे झाड़ मिले। तो इनको बड़ा शौक हुआ, कहा कि क्या मैं सदका करूंगा तो मुझे मिलेंगे? कहा अल्लाह की मेरा बाग, अल्लाह के रहमान। घर पहुंचे, घर जाके बाग में दाखिल हुए और आवाज दी अपनी बीवी को और कहा मेरी बेगम तुम बाहर आओ। कहा क्या बात है? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबरी दी कि अगर तुम सदका करोगे तो ये मिलेगा, मैंने अपना बाग सदका कर दिया, अब मेरा दिल नहीं अंदर आने को, सामान ले
लो, बच्चों को लो, बाहर आ जाओ। इनकी बीवी बाहर निकली और निकलते नहीं सुनिए उस बीवी के अल्फाज, क्या अल्फाज बोलते, तो इनका जवाब यूं था, हदीस में आता है, कामयाब तिजारत का कामयाब सौदा किराया। ये कहते हुए बाहर जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर मिली कि अबू दहदा ने ये किया, तो आपने कहा जन्नत कितने ही भारी और बकसरत गुच्छे अबू दहदा को मिलने वाले, बहुत झाड़, बहुत खजूर वाले गुच्छे के गुच्छे मिलने वाले हैं। इसलिए किया, और बीवी के अल्फाज क्या, बहुत खूब सौदा, बहुत खूब तिजारत के आ गए। ये बहुत बेस्ट था जो हम कर सकते थे अल्लाह के नाम, चीजें बाहर आ गई, अपनी नफ्स में नहीं खर्च किया, खर्च करने मदद, मतलब ये खुद अल्लाह के नाम में खर्च करने का मिजाज। ये खुद शौहर की इनकम में से शौहर को उकसाती है, क्या कर रहे हो इतना, डालो अल्लाह के नाम में, कुछ आखिरत में नहीं है तुम्हारा, किफायत शार है अल्लाह की, ये नहीं कि पूरा लगा दे रही। वो खुद हस्बैंड को मोटिवेट करे, कैसा मोटिवेशन था अजीब। अब सोचिए एक आदमी आगे कहा ये घर मैंने अल्लाह के नाम में सदका कर दिया कि बहुत जरूरत नहीं है, और ये हो रहा, और बीवी कहती वाली बहुत खूब, मतलब क्या इस्लाह होगी, क्या तरबियत थी उन लोगों की, क्या मिजाज था उन लोगों का, बहुत खूब सौदा, बहुत सौदा, से बाहर। अच्छा, मतलब ये देखा जाए ना तो नौजुबिल्लाह, अल्फाज ठीक नहीं, लेकिन उर्दू में और अल्फाज नहीं है, पागलपन की हद है, लिमिट्स। कोई आदमी आज के दौर में सहाबा के वाक़ा से बोलेगा नौजुबिल्लाह मेंटल की प्रॉब्लम तो ऐसा हमने कहा। यहाँ तो हाल ही कि अगर मुखर्रिफ खतीब जज्बे में खुतबा दे दे जुमे का और बोले कि अल्लाह के राह में खर्च करने की फजीलत है, और जोश में आके पिंक कलर का नोट निकाली दिया जज्बात के साथ और डाल दिया, तो 2 महीने तक मस्जिद नहीं आते। नको बहुत गुस्सा उछाला देता, पैसे निकाल लेता, जी नको मैं नहीं आता नमाज के लिए, उतना चढ़ा देते उन्होंने, 2000 दे दिया, अब तक मलाल हो रहा है 2000। ये तो हमारी कैफियत और उनकी कैफियत थी बहुत अलग कैफियत। बहरहाल तो वो देखिए कैसे खर्च करने पर इताअत इलाही में मदद करती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस के अल्फाज है कि अल्लाह ताला ऐसे आदमी पर रहम करे, ऐसी औरत पर रहम करे जो रात में नहीं उठते तहज्जुद, और अपनी अगर शौहर उठता है तो बीवी को उठाते और बीवी तो शौहर को उठाते, और अगर ना उठे तो पानी को अल्लाह की इताअत में मददगार होती है। इसके दिल को मोहब्बत से भर देती है, याद रखिए। इसके लिए जो है तैयार हो, अच्छी तर्ज आराइश करती है, ये भी बड़ा एक अहम पार्ट है। अगर हमारे पास भूल गए, खासतौर बहनें जो भूल गई है कि एक औरत ने शौहर के लिए तैयार हो, ये अच्छे होने की अलामत से एक अलामत है, याद रखिए। और इसकी जो है खुशबू और जो है मतलब जिसको हम कहेंगे वो उसके लिए जो है आराइश करिए, शौहर के लिए आराइश करना एक बीवी के लिए जायज है। बस मसला ये है कि शौहर के नाम से आराइश शौहर के लिए नहीं है, शौहर के नाम से हो रही। दावत में जाना बहुत तैयार होगा, इसलिए तैयार होगा क्योंकि बहुत पसंद है दावत। इन्होंने बोले 7 बजे में आ रहा, रेडी रहो। इन्होंने 7 बजे गाड़ी लेके आ गए, गाड़ी में बुरखे में बैठ गए, इन्होंने देखे नहीं, अब गाड़ी लेके जा रहे क्या कैसा होगा, गाड़ी पहुंच गए, दावत में इन्होंने पहुंच गए। कौन जिनके लिए इन्होंने तैयार होते तो इधर चले गए, मर्दों में औरतों में गए। इन्होंने अब पर्दा खोले और वहाँ दुनिया ने इनको देख, बरतने वालों ने देख, इन्होंने देख लिए, फोटोग्राफर्स ने देख लिए, दुनिया के मर्द जो लड़की वालों की तरफ से, लड़के वालों की तरफ से जो एकदम शरीफ और पाक और साफ है, ऊपर आते जाते हैं, काम करते रहते हैं, पता नहीं मतलब उनके निकाह के प्लान है नहीं है, लेकिन बहरहाल वो आते हैं, मतलब ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि बहुत नेक है, कोई औरत हमारी औरत को भाई सकती है अपना माशाल्लाह, और सारे लोगों को छुआ। फिर उसके बाद आके गाड़ी में बैठ के क्या दावत खाना अंदर चले गए। अब उसके बाद छोर आए, अपने कपड़े बदल रहे, भी आप बदल गए और मुंह धो के एकदम मैदान पूरा साफ हो गया। लेकिन आप तैयार किस लिए हुए? नहीं वो बहुत पसंद है, मैं तैयार हूँ, लेकिन तो देखिए ना पूरे, अरे हाँ उतना भूल गया अपन बाकी तैयार इनके नाम से हुए। इन्होंने बेचारों ने आपको जब गए थे तो तैयार सूरत में नहीं देखे, आने के बाद उजाड़ सूरत में देखे, इसके अलावा किसी मिला नहीं, मतलब बिल्कुल मैक्सी वैक्सी पुरानी लेके, बाल फैले हुए और पूरा ये पेस्ट करके आगे थोड़ा इधर लगा हुआ और आके बैठे। आप बोलते हैं तैयार हो, वो तैयार हो, लेकिन शौहर ने देखा नहीं। अब वो एक अलग बात है, चलो अगली बार आप भी ऊपर आ जाना तुम देखने में, तो बोलता अच्छा अगली बार नहीं, अगली बार मत आप नीचे रहो, अच्छे अगली बार आएंगे प्रॉब्लम। तो देखिए आपको आ रहा है, तैयार हो उसके लिए आता, ठीक है। इसी तरह जो आखिरी बस इसके सामने किसी गैर औरत बयान ना करे, बयान ना करे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना किया किसी एक औरत को कि दूसरी अपने शौहर के सामने कभी बयान करे। तो ये नेक औरत सिफात की बात खत्म होने पहले नेक औरत की अहमियत, ये तो थे ड्यूटीज, अब उसके राइट देख लेते हैं क्या है, मतलब उसकी अहमियत क्या है। नेक औरत मिलना, किसी को अच्छी बीवी मिलना इतनी बड़ी बात। अब अच्छी बीवी मिलना खाली बीवी के नजरिए सोचिए, अपने बच्चियों को भी ऐसी तरबियत दीजिए कि ये अच्छियां बने जब जाए, बीच में पार्ट है। तो आइए अच्छी क्या खुसूसियतें हैं, उसके क्या फायदे हैं, हदीस में आते हैं, मुख्तसर रख के बात खत्म कर रहा हूँ। बीवी के इंतखाब में जबरदस्त एहतियात करने की जरूरत है। रफीक हयात, लाइफ पार्टनर, आदि जिंदगी, लाइफ पार्टनर हयात, रफीक हयात, जिंदगी की बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बहुत सेंसिबल लेना है। सही बुखारी की रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कहते हैं मैंने अपने बाद मर्दों के लिए औरतों से बड़ा फितना कोई नहीं छोड़ा। अब मैं औरतों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, वजाहत इस सेंस में कर रहा हूँ। यहाँ नबी अकरम बता रहे हैं और आप सब भी जानते हैं, जितनी अहम चीज होती है उसकी खराबी उतना ज्यादा नुकसान भी पैदा करती है। दिल बॉडी का सबसे अहम पार्ट है, लेकिन अगर खराब हो जाए तो कितनी भी बीमारियों के बाद मुश्किल आता है, कितने महंगी ऑपरेशन, महंगी दवाएं। उसी तरह औरत बड़ी अहम चीज है कि मेरे बाद ये आजमाइश है, इसका मतलब ये है कि तुमको बहुत चुनकर और सेलेक्ट करना है शादी के लिए, वरना ऐसा ना निकाह कर लो जिसके बाद फितने में मत जाओ। होता है ना, लोग देखते नहीं, मनमानी करते और उसके बाद बहरहाल परेशान होते। दूसरी चीज याद है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया बनी इसराइल का पहला फितना औरतों से। इससे ही पता चल रहा है कि हमें सेलेक्ट वाइफ में बहुत मोहताज रहकर किसको तरजीह देना है, दीनदारी को याद रखें, तरजीह देना। इसी तरह दूसरी चीज, नेक परहेजगार और वफादार बीवी दुनिया की हर चीज कीमती, हर चीज नेक परहेजगार वफादार बीवी सबसे चीज है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया जमा कर दी जाए और सबसे बेहतर मता इसमें जमा करने की चीज अलमरअ सालिह सालिह के नेक सबसे बेहतरीन सामान है जमा कर, ठीक है। और नेक बीवी को एक रिवायत में कि आपने खुश बख्ती की अलामत बताया, अच्छी किस्मत होने की अलामत बताया कि को नेक इंसान मिले। अगर हम जो है माएँ, हमारी बहनें, हमारी बच्चियों को
مثالی بیوی بنانا چاہتے ہیں، وہ اپنے شوہر کے لیے مثالی، میری بیوی میرے لیے مثالی بھی بنے، تو اس کے لیے 4 ایسی عورتیں جو لائق ہے جس کی ہماری عورتیں چاہتی ہے۔ آئیے حدیث کے الفاظ سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک حدیث کے راوی کہتے ہیں، فرماتے ہیں کائنات بہترین خواتین 4 ہے، کائنات سے بہترین خواتین 4 ہے، 4 ایسی عورتیں ہیں، 4 ایسی عورتیں جو ایگزمپلری، یہ کائنات سے بہترین، دا بیسٹ ہے، وہ کون کون ہے؟ اور یہ مکمل عورتیں، کامل ہے، کئی کامل گزری عورتوں بڑے کم ہیں، ان میں سے بھی ہے، وہ کون سی ہے؟ ٹھیک ہے، نبی کا 4 عورتیں ہیں۔ پہلا مریم بنت عمران، ٹھیک، مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کی زندگی کا ضرور تعلق، اور انشاءاللہ میرا لیکچر بھی آ رہا ہے آخری قرآنی خواتین میں آئیں گے۔ مریم بنت عمران، ٹھیک، جو ہے مریم علیہ السلام۔ دوسرا خدیجہ رضی اللہ عنہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی، زندگی آپ زندگی پڑھیے، کا مطالعہ کیجیے، سبحان اللہ، فضائل میں سے ایک پڑھتا ہوں، کیسی عورت تھی، کتنی پاک باز، کتنی نیک اور لائق تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ، کہ اللہ کے رسول فرماتے، بخاری کی روایت ہے، علیہ السلام آئے اور اللہ فرمایا کہ اللہ کے رسول خدیجہ آ رہی کہ ہاتھ میں ایک برتن ہے، آپ کے لیے کھانا لا رہی، جب وہ آئے تو ان سے کہنا اللہ رب العزت آپ کو سلام کہتا ہے، اور جبرائیل کی طرف سے بھی آپ سلام، اللہ کے رسول کہا کہ اے خدیجہ اللہ سلام کہتا ہے، جبرائیل تم پر سلامتی بھیجتے، آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو تو جواب دیا اور کہا کہ اللہ کو کیا میں سلامتی بھیجوں، اللہ خود سلام، اللہ کو تو آپ سلام اور کیا دیں گے، وہ خود سلام سے آتے، تو اللہ رب العزت نے آپ سلام بھیجا آسمان، جبرائیل علیہ السلام نے آپ سلام کیا، اتنی مکمل عورتیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کیجیے، خاص طور سے مریم علیہ السلام کی بہت مختصر حصہ، اور آپ نے شادی نہیں ملے، لیکن ان کا صبر تحمل ضرور ملے گا، لیکن یہاں ان کا ٹھیک۔ تیسرا آپ نے فرمایا فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ، فاطمہ رضی اللہ عنہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ کی بیٹی، اور ان کی وجہ آپ جانتے ہیں یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اور چوتھا فرمایا فرعون کی بیوی آسیہ، دیکھیے زمانے کا جابر انسان ہے، مالی اعتبار سے بہت مالدار ہے، وقت کا بادشاہ ہے، اور ساتھ طاقت و سلطنت ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے 4 بادشاہ ساری دنیا پہ سلطنت اس زمانے، جن میں فرعون کو بھی انہوں نے، اور سلیمان اسلام بہرحال یہ ایسا بادشاہ تھا اس زمانے جو سیویلائز ورلڈ تھا حکومت، تو کہا کہ ایسے انسان کے نکاح کے بعد وہ ایمان والی تھی، اور پناہ مانگتی اللہ فرعون کی شر سے عمل سے مجھے پناہ دے۔ میں یہ 4 لائق ہے تقلید اور شاپتے ہیں، یہ چند باتیں جو مثالی میاں کیسے ہو، میں نے آپ کے ساتھ اسی پہ اپنی بات کریں گے۔ اللہ رب سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو زیادہ عطا فرمائے، ہم تمام کے لیے چیز آسان کرے کہ ہم لوگ جو ایک مثالی شوہر بننے کرے، ہم تمام عورتوں کے لیے مثالی بیوی، ہم تمام کے ساتھ مل کر رہنا اور دین پر چلنا آسان کرے، جب تک ہم اسلام اور ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔